जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। आई होप यू कैन हियर मी। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज की क्लास हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल एक्सप्लेन के व्हाट इज सीएसएस फॉर न्यू एस्पायरेंट्स, बिकॉज आई थिंक वी हैव मेनी यंग एस्पायरेंट्स in our orientation class. And then I will brief you about our upcoming sessions जिसका आप पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं. And then there will be the sharing of study plan, and then there will be question answer session. सो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ दैट आई डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन ड्यूरिंग द क्लास. सो इट इज़ very smooth, and then you ask questions if you have any. You can write down during the class, and then at the end I allow you ample time. You can ask your questions during that time. So this is how we continue our classes. And another important thing is that आपको class की recording always provide कर दी जाती है whenever you take the class, or for any reason you miss the class because of any kind of assignment or any kind of other engagement. तो इसमें आप सबको इशू नहीं होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में. We are going to talk about, first of all, most of you do know, but for some who don't know this thing, let me share the profile first. I think आपको जो है वो स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं आपकी स्क्रीन पे. सो माय नेम इज वेरी लाइक एवरीवन नोज इट. एंड देन इट इज माय बेसिक एजुकेशन दैट आई हैव डन बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, and it is from UIT. So basically I am an engineer turned bureaucrat. So it's very common that mostly जो bureaucrats हैं, they are either engineers, doctors, or they belong to any kind of profession nowadays, because the civil services is very attractive for our professionals. मैं अगर CSS और PMS प्रोफाइल की बात करूं तो इट इज लाइक काइंड ऑफ लैग इन द वीडियो. अच्छा, सबसे पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बैक इन 2017, इफ आई रिकॉल इट, बिकॉज मैनी ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी, और उनको थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट लाइक कि आज आप अपीयर होने जा रहे हैं, आज आप तैयारी करना स्टार्ट किया आपने, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप समझेंगे कि जी मैंने तो जो है वो तैयारी इसमें अपीयर हो जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा. इसमें स्टूडेंट्स होते भी हैं, लेकिन माई जर्नी इज समथिंग एल्स. इट इज़ वेरी लेंथी वन. और आपके सामने अगर मैं शेयर करूं तो आई अपीयर्ड फर्स्टली इन PMS 2018 आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ वन होल ईयर, kind of understanding about what is this exam CSS, what is this exam PMS, about the subjects, about the strategy to prepare these subjects. So I was like blank in that regard. Or during university, I did not have any kind of idea about these civil services exams, because मेरा इसके ऊपर कोई inclination, कोई motive नहीं था. This was a random plan that I made it after graduation. During graduation I was not having any kind of idea that I would be the part of civil services. तो पहले मैंने PMS एग्जाम दिया in 2018, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एलोकेशन. यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं न्यू, वो समझते हैं कि जी रिटन ही मेन एग्जाम है, इसमें हम अपीयर हो जाएंगे और इसमें हम पास हो जाएंगे एंड दैट्स ऑल. उसके बाद इट इज सिंपली एलोकेशन, बट इट्स नॉट लाइक दैट. It is a kind of different game. You have to pass the exam, that is the first phase. Then you have to get allocation. And for the students of Punjab, for the students of this major province, it's not like Baki province mein competition nahi hai. Yes, competition is still there. But if you are talking about Punjab and if you have domicile from Punjab, it's very competitive out there, because in PMS अगर हम बात करें पंजाब की, I could not get allocation. I passed the exam, but then in CSS 2018, the same thing happened with me. I could not get allocation in CSS 2018 as well. उसमें मैंने एग्जाम पास कर लिया था, and my position in CSS 2018 was 256. PMS का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं है उसका. उसके बाद देन इट वाज CSS 2020. अब पूछेगा कोई कि सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आपका,
2018 में आपने एग्जाम दिया और 2020 में आपका जो है वो दोबारा आपने एग्जाम दिया, तो व्हाट यू इन बिटवीन इट। सो आप सबके लिए यही चीज कि भाई 2024 वाले अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इस मंथ एक्सपेक्टेड है। मे बी आज आई वॉज टॉकिंग टू समवन क्लोज विद दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, एंड ही वाज सेइंग कि भाई अभी 30 अप्रैल का जो है वो टेंटेटिव है कि 30 अप्रैल तक हम रिजल्ट दे दें, बट अगेन देयर आर सम इश्यूज इन द रिजल्ट कंपाइलेशन, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले होता जा रहा है। सो होपफुली रिजल्ट इस वीक आ जाए, और मे बी नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को आ जाए CSS 2024 का। तो भाई गेम यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने अपीयर हो गए, आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेट फॉर CSS 2018। द रिजल्ट came out, the final result of interview and everything, on 31st May 2019. So you believe it, like 31st May 2019 को मेरा final result आता है. So it is a very long wait, 1.5 year. तो उसमें you cannot appear in the next exam right away, क्योंकि आपकी पूरी interview की जो preparation है, that is altogether different. Then we have this PMS 2020. I qualified it, but I did not appear in the interview stage क्योंकि उससे पहले CSS 2020 का रिजल्ट आ गया हुआ था, एंड दीज आर सम अदर एग्जाम्स ऑन विच आई अपीयर्ड। तो ये थोड़ी सी मेरी एक ब्रीफ सी जर्नी है। मैंने इसमें आपके साथ ये शेयर नहीं किया कि मैं कितने आवर्स पढ़ता था, मैंने ये भी नहीं शेयर किया कि मेरी डाइट प्लान क्या होती थी, क्योंकि कुछ अब मेंटोर जिस तरह की भी मार्केट में आ गए हैं, कोई कहते हैं कि आप सुबह उठ के ये खाएंगे, मतलब कुछ चीज़ें खाएंगे तो आपको हाफजा ज़्यादा टेस्ट चलेगा। तो मे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम तो बड़े एक सिंपल वे में चले हैं, कुछ मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता था तो फिर भी गुजारा कर लेते थे। तो इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। यस, यू हैव टू फॉलो अ प्लान, जो कि मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा, या एक डिफरेंट भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये एक मेरा सिंपल सा एक ओवरव्यू है, ब्रीफ सा, कि भाई ये कोई डुएबल जर्नी है। इट्स नॉट अ वेरी लाइक डिफिकल्ट थिंग कि स्टूडेंट समझें कि भाई हमसे नहीं होगी, या ये कोई आसमान सी चीज़ है जो कर लेते हैं। और एक और चीज मैं आपको नहीं बताई कि इन ऑल ऑफ दिस जर्नी मैंने हार्डली एक दफा मॉक दिए थे, और वो मैंने मॉक कब दिए थे, CSS 2018 के रिजल्ट के फौरन बाद। वो मेरे एक दोस्त ने एनरोलमेंट करवा ली अपनी रिटर्न के लिए, टेस्ट के लिए, मॉक सीरीज के लिए, लेकिन एट द एंड उसने कहा दी मैंने जो है ना वो अपनी होना। तो उसके बाद फिर मैं जो है उसकी जगह जाके दी। तो इसमें मैंने कोई एज सच रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आप ये ना समझें कि इट्स वेरी हार्ड। मैं कुछ आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि ये डूएबल जर्नी। अच्छा जी, स्क्रीन पे इट्स वर्किंग फाइन, प्लीज लेट मी नो इट इज वर्किंग फाइन। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। ओके, देर इज, अच्छा जब स्लाइड्स में इतना कुछ नहीं है, मैं वीडियो में ही मोस्टली आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन करूंगा। CSS, अब इसमें थोड़ा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसमें आपको ये बताया कि इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सबसे पहली चीज ये है कि इसको पास कैसे किया जाए, लाइक हाउ द, अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि इस एग्जाम को हम किस तरह पास कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इसमें कोई एज सच बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपका प्रोफेशन या आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, या आपने लिटरेचर की बुक्स आपने रीड करनी होनी चाहिए, या आपके पास जो है वो एक 2 इयर्स का आप इसमें कंटिन्यूस आप प्रिपरेशन करें तो फिर ही पास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विद वेरी स्मार्ट वे नाउ डेज, क्योंकि आजकल जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, बिलीव मी कि व्हेन आई वाज अपियरिंग इन 2020, ये चीजें हमारे पास भी अवेलेबल नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी और जो सारी चीजें हैं वो बहुत तेजी के साथ चेंज हुई हैं। अब एट दैट टाइम अगर हम बात करें 2020 और 2018 की, तो ऑनलाइन एजुकेशन वाज नॉट वेरी कॉमन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल आपको बहुत ज़्यादा जो रेडीमेड चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन एट दैट टाइम मोस्टली आपको फिजिकल एजुकेशन या
आपको ऑन कैंपस एजुकेशन के लेने जाना पड़ता था। ऑनलाइन चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। तो आजकल तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नाउ एक और चीज़ जिसकी वजह से बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं, डेट इज चैट जीपीटी और एआई पावर्ड सर्च इंजन, जिसकी वजह से यू कैन लाइक अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है, इट विल हेल्प यू। अगर आपके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ थ्योरी और इट्स एप्लीकेशन, आपको सारा ही चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो आजकल तो पास करना इट्स इजी। अब जब ये चीजें सबके पास अवेलेबल हैं तो एट द सेम टाइम इट इज बिकमिंग वेरी competitive एज वेल। तो इसको पास किस तरह किया, सॉरी, इसको पास किस तरह किया जाए सीएसएस को? अगर हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे जी, हमारे पास कुछ मंथ्स हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लाइक वी हैव 8 months in this year and then you have January for revision and other stuff. तो 8 months are enough if you have a full plan for your CSS। सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं। अच्छा, बेसिक से क्या मुराद है? हम बात करते हैं मोस्टली कि जी आपके बेसिक ठीक है तो 8-9 महीने में आप ये तैयार कर सकते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब बेसिक ठीक होने से मतलब ये है कि भाई आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो आपकी बेसिक ग्रामर है, यू नो दैट इफ इट इज फाइन, आपको उसके ऊपर वर्किंग की जरूरत तो नहीं है। लाइक आप इजीली एक चीज को, एक सिंपल जो आपके पास मटेरियल है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बहुत ही डिफिकल्ट वोकैबलरी यूज करें, सिंपल वोकैबलरी यूज करके अगर आप उसको लिख सकते हैं तो आपकी बेसिक्स ठीक है। एक और चीज इसके अंदर बेसिक्स के अंदर आ जाती है कि यार जो आप किसी से चीज पढ़ रहे हैं या आप कुछ चीज खुद पढ़ रहे हैं, शुरू में तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपको समझ आ रही है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लाइक आपने अगर पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट की, उसकी कोई बुक स्टार्ट की, जैसे पाकिस्तान हार्ड कंट्री है या मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, आपने उसको स्टडी किया तो आपका एक समझ आ रही है कि यार ये एक हिस्ट्री है, उसकी एक डेवलपमेंट आपके माइंड के अंदर बनना शुरू हो गई है। तो इट इट मीन्स कि आप एक बेसिक्स आपकी रेडी हैं, आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक्स ठीक नहीं है, उनको 1-2 महीने इसके ऊपर लगा लेने चाहिए, और इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, शाइनेस वाली बात नहीं है कि जी मेरी तो ठीक नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने भी लगाए थे बेसिक्स के ऊपर, आई वॉज नॉट रेडी कि भाई मैं अपनी डायरेक्टली स्टडी तैयार करूं, सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, जंप स्टार्ट करूं। तो बेसिक्स आपको ठीक करनी पड़ती हैं, आपको पहले ग्रामर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। Why I was focusing on these two things, essay और grammar and vocabulary? क्योंकि भाई सीएसएस के अंदर आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपल्सरी हैं, 6 ऑप्शनल हैं, एंड यू हैव टू पास इन एवरी सब्जेक्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर कर देंगे। इट इज लाइक यू हैव टू पास इन एवरी सब्जेक्ट। तो ऐसे के बगैर और ग्रामर के बगैर आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आपका मेंटली आप उस पर रेडी हो ही नहीं सकते कि उसके ऊपर आप काम शुरू करें। तो जो सबसे बेसिक हमारे बिल्कुल ही न्यू एस्पायरेंट्स हैं, या जो ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, मोस्टली मैसेज करते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटी में, आप बताएं हम कौन सी बुक्स पढ़ें। भाई आप अपनी वीकनेस देखें ना। सीएसएस के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश राइटिंग होनी चाहिए, तो शुरू में आप उसके ऊपर फोकस करें। या आप बिल्कुल ही न्यू एस्पायरेंट हैं तो उसके ऊपर फोकस करें, और उसके साथ एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर लिया या कोई इसके साथ ऑप्शनल स्टार्ट कर लिया। तो डेट विल हेल्प यू। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, जो दूसरी चीज आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 2025 के कुछ एस्पायरेंट्स होंगे जो कि आज हमारी क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, और मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि क्लास ले रहे होंगे। अब उन्होंने 2025 में अपीयर हुए होंगे और एग्जाम सेंटर का आपने एनालिसिस किया होगा। अब सम स्टूडेंट्स वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद मी, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है एसए का। अब फर्स्ट पेपर में जब आप सेकंड पेपर देने आते हैं तो यू सी कि भाई आधा होल, मतलब हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर अपीयरिंग इन एसए आर नाउ मिसिंग। कहाँ गए वो? मतलब दे जस्ट लेफ्ट द एग्जाम सेंटर, और उन्होंने पहले ही अपनी जर्नी को स्किप कर दिया। तो आपका आधा कंपटीशन ऐसे के बाद ऑलरेडी खाली हो जाता है। फिर उसके बाद प्रेसी है, फिर बाकी नेक्स्ट पेपर्स हैं। तो बिलीव मी कि अगर आपके पास 20,000 स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, तो हार्डली उसमें 2 to 3,000 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2,000 to 3,000। कोई सीएसएस की मार्केट बहुत बड़ी नहीं है।
मतलब यस, आपको स्टूडेंट्स हर जगह नजर आएंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीएसएस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिटर्मिन्ड हैं और जिनको पता है कि भाई हमने अपेयर होना है, और जो तैयारी एक तरीके से कर रहे हैं, वो 2000 to 3000 ही है। तो अगर आप इसकी रेशियो निकालें तो आप ठीक देखेंगे कि बिल्कुल ठीक है, 300 से 500 ही उसके अंदर से पास करेंगे, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स में से पास करना है। अब काफी स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जैसे लास्ट ईयर हुआ, उसने इस्लामियात इतनी मुश्किल दे दी। तो भाई हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे जो सीएसएस का एग्जाम है, उसमें हर चीज के ऊपर एक फिल्टर लग जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो चाहे कंपलसरी सब्जेक्ट हो, वो हर जगह एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है, आपके नर्व्स टेस्ट कर रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है, एंड सैडली आपकी क्रैमिंग टेस्ट हो रही है। तो सीएसएस रिफॉर्म्स के ऊपर तो हम आएंगे कि क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसमें आपने 2026 में अगर आपने अपीयर होना है, तो आपने तो इसी सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम बेसिकली रोट लर्निंग के ऊपर बेस करता है, क्रैमिंग के ऊपर बेस करता है। अब कुछ आपको कहेंगे नहीं जी क्रैमिंग नहीं है, आपका पर्सनल क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। यार क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? वो तभी आएगा ना जब आपको चीजों का पता होगा कि भाई गजा के अंदर वॉर है, क्यों हो रही है, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, पीछे हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री आपको याद करनी पड़ती है। आप लिख के नहीं आपके सामने एग्जामिनर दे देगा पैराग्राफ के जी ये हिस्ट्री, अब आप इसमें से अपना एनालिसिस करके दें। नो, इट विल नॉट हैपन। आपने चीजों को खुद याद करना है और फिर जाके लिखना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज याद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक शेयर करूं कि जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की जियोग्राफी आपको पता है। अब मैं कहूँ कि जी थ्रेट्स इसके ऊपर बताएं कि पाकिस्तान की जियोग्राफी की वजह से पाकिस्तान को क्या थ्रेट्स है। तो आप उसको ज्योग्राफी को पहले याद किया होगा, तो फिर बताएंगे कि भाई भाई वाकई अफगानिस्तान जो है वो आपका एक एनिमोसिटी वहां से क्रिएट होती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। आपको हिस्ट्री याद होगी, तो फिर ही आप बताएंगे ना कि भाई इंडिया से तो हमारा जो है वो सदियों से ही मसला चल रहा है, कश्मीर की वजह से या मल्टीपल वाटर इश्यूज की वजह से। अगर आपको हिस्ट्री याद होगी तो फिर ही बताएंगे कि भाई ज्योग्राफी की वजह से ही इंटरनल स्किर्मिशेस पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाती हैं डिफरेंट इश्यूज की वजह से। तो जब आपको क्रैमिंग करेंगे तब ही आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे। और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि भाई सीएसएस को आप क्रैमिंग के बगैर पास ही नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ब्राइट स्टूडेंट हो जाएं, यू हैव टू डू सम क्रैमिंग। आप इस्लामियात के अंदर रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के अंदर कोटेशन यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कोटेशन यूज कर रहे हैं, मैप्स बना रहे हैं, ऐसे के अंदर आप वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, प्रेसी के अंदर आप वोकेबलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्शनल्स आ गए, जो भी हैं। इट इज द क्रैमिंग थिंग जो कि आपने करनी है, और अपने माइंड में भी से बिठा लें कि भाई ये है। आप कोई इस तरह का ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट्स नहीं है, या आईबी जो सिस्टम है, जिस तरह इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होती है, ये वो सिस्टम नहीं है, ये जीआरई का एग्जाम नहीं है कि आपको आप चीजें आप कहेंगे कि भाई हम तो समझ गए हैं, उधर जाके हम इसको अपने वर्ड्स में कर लेंगे। करना आपने तब भी अपने वर्ड्स में है जब आपको क्रैमिंग हो, लेकिन क्रैमिंग से क्या होता है कि भाई 3 घंटे हैं आपके पास, यू हैव ओनली 3 आवर्स, एंड द क्लॉक टिक्स वेरी फास्ट इन द एग्जाम सेंटर। आप बैठेंगे, आप 10 मिनट तो गुजर जाएंगे आप सेट करते करते, जब अपने आप को सेट करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, और यही वो चीजें इन 300 to 500 स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं कि भाई मैं एक कंपटीशन के अंदर बैठा हूँ और मैंने यही चीजें जो मैंने याद की हैं इसी को मैंने अप्लाई करके आना है। मैंने कोई एक्स्ट्रा यूनिकनेस नहीं करनी। मतलब आई गॉट 18th पोजीशन, ठीक है, 18th पोजीशन है मेरी, आप समझ रहे हो कि बड़ी मुश्किल से आई है, लेकिन जब मैं एग्जाम के अंदर था तो आई वॉज नॉट टारगेटिंग कि भाई मेरी 18th एक पोजीशन होगी या मैं टॉप करूंगा। वो तो एक ब्लेसिंग है दैट आई टॉप द एग्जाम, और इसमें मेरी चीजें अच्छी रही, लेकिन एट दैट टाइम व्हाट वाज इन माय माइंड, भाई मेरा था कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर जो है वो इसके अंदर मैंने अच्छा परफॉर्म करना, लाइक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वाज अ टेस्ट फॉर मी। आई जस्ट मेड श्योर कि भाई मैं इस पेपर के अंदर परफेक्शन लेके आऊं। मैं इसको कोई नहीं सोचता था कि मैंने टॉप करना है या नहीं करना, तो बात की बातें हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर आपका ये होना चाहिए मोड, या जो भी चीज आप पा रहे हैं कि भाई ये चीज मेरे से बेहतर है, कोई इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता। और एक और चीज इसके अंदर आती है, वो आती है प्रिपेयर स्मार्टली। अब sadly speaking, because I have been teaching to CSS and aspirants for quite a number of years,
मेरा जो फर्स्ट बैच था, आई स्टार्टेड दैट बैच इन 2021 दिसंबर, ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट बैच एंड वी आर नाउ इन 2025 एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन एवरी ईयर आई कंडक्ट 4 to 5 बैचेस करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के, एंड आई हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन माय सेशंस, लाइक 200 to 300 स्टूडेंट्स होते हैं हर सेशन के अंदर। एंड इट इज लाइक माय कंसिस्टेंसी एंड माय, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बट आई ट्राई टू डिलीवर माय बेस्ट, जिसकी वजह से एक मेरा अच्छा रिजल्ट आता रहता है। तो मेरे अपने जो एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स स्मार्टली प्रिपेयर नहीं करते। वो बहुत एक हार्ड कोर मटेरियल तैयार करने चले जाते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसको मैंने जो है ना, जैसे करंट अफेयर का कोई टॉपिक मैं बताऊं, जैसे अभी एक बड़ा वॉर टॉपिक चल रहा है कि जी ट्रम्प एंड चाइना ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वॉर को समझने के लिए पता नहीं वो क्या क्या करेंगे, 15 सोर्सेज से पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे, किसी और से पढ़ेंगे, 4-5 जगह से पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कर रहे हैं, दे आर डूइंग फाइन, वो अपनी एक इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम यार। करंट अफेयर्स पे एक सब्जेक्ट है, एक चीज आपने कर लिया, डेट इज फाइन, पेपर के अंदर आ गई, आपने लिख दी, नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे, इसमें कोई मसले बात तो, इशू वाली बात तो नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, एक टॉपिक के ऊपर, आप उनमें से भी एक स्टूडेंट हो सकते हैं या आप में भी आप ऐसा ना करते हो, लेकिन शुरू में सारे यही करते हैं स्टूडेंट्स के जी एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, वो कहते हैं सर ये तो हमें इतना समझ आ गई है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मटेरियल इसके ऊपर शेयर कर दें या एक्स्ट्रा सोर्सेज शेयर कर दें। आई हैव नो इशू, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक्स, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइक enrolling with me and then covering the same thing on your own end? जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो कहता है कि यार ये चीजें मुझे मिल गई हैं, दैट इज फाइन, भाई मेरा ट्रस्ट है इस बंदे के ऊपर, जो ये बंदा कराएगा वो ठीक होगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, किसी भी मेंटोर के ऊपर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, फिजिकल पढ़ा रहा है, आप जाके उनको रीड कर लें, उनसे पढ़ लें, लेकिन एक ट्रस्ट कर लेना कि यार ये बंदा ठीक है। या आप खुद पढ़ रहे हैं तो एक सोर्स कर लें, कि डिफरेंट सोर्सेज कर लें कि यार ये टॉपिक मैंने इस सोर्स से कर लिया, दैट इज फाइन, इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार परफेक्शन चाहिए हमें, मैं तो इस सोर्स से भी पढ़ूंगा, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ूंगा, एट द एंड क्या होगा, 3 महीने में एक सब्जेक्ट पे लगा दूंगा और फिर मैं कहूंगा कि यार ये तो रहे 3-4 महीने गए हैं सीएसएस के लिए, तो मैं तो ये सीएसएस नहीं देने वाला 2026 का, मैं 2026-7 में पे रहूंगा। तो दे हैव डन, अब लाइक उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया है, उन्होंने अपने साथ एक अपने आप को एक डायलेमा के अंदर अपने आप को एक शामिल कर लिया है कि वो एक ऐसी रेस के अंदर शामिल हो गए हैं जो कि खत्म ही नहीं होनी। वो घोड़े अपने ऐसी सिमत में उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिए जिसका कोई एंड नहीं है, वो इन्फिनिटी की तरफ चले गए। तो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं बनना आपने। अगर आप ये सुन रहे हैं तो कुछ एक पॉजिटिव चीज लेके जाएं कि आप जो चीजें आप तैयार करने जा रहे हैं, दैट शुड हैव सम काइंड ऑफ लिमिट्स इम्पोज्ड ऑन इट। अच्छा, ऐसे की लिमिट्स नहीं हो सकती, पैसे की नहीं हो सकती, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। अच्छा, किसकी लिमिट्स हो सकती हैं, जीएसए की है, पाक अफेयर की है, करंट अफेयर की है, इस्लामियात की है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की हैं। आप कह दें कि यार मैंने आईआर पढ़ ली है, तो आईआर के लिए आप जो है वो केनेथ वॉल्स की भी उसको फॉलो कर रहे हैं, मेयर शेमर को भी फॉलो कर रहे हैं, उसके करंट आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, इनकी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? आप इतनी चीजें जब पढ़ी जा रहे हैं तो अपने आप को खुद ही एक ऐसी एम्बिग्विटी के अंदर, एक ऐसे डिलेमा के अंदर शामिल करते जा रहे हैं कि जिसका एंड नहीं है। क्योंकि सीएसएस एक, मतलब वी आई नॉर्मली से कि ये एक ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है जिसमें आप एक दफा डूब गए तो आपको किनारा नहीं मिलना। यू हैव टू फाइंड अ पाथ कि भाई इस पाथ के ऊपर मैंने चलना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप किनारे को लग जाएंगे, अगर किस्मत नहीं अच्छी तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव अदर ऑप्शंस, आप किसी के ऊपर चले जाएं, कोई और ऑप्शन देख लें। तो ये वो चीजें हैं जो आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, और फिर ही आप सीएसएस को पास कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, बट दिस इज माय 2 सेंट्स ऑन सीएसएस के भाई स्टूडेंट्स क्यों पास होते हैं, और जो स्टूडेंट्स पास होते हैं वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। मे भी कुछ स्टूडेंट्स पे इससे फायदा हो जाए और कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर शामिल हो जाए। अब हम जी नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं। मैंने अपनी जर्नी बता दी, रोलर कोस्टर राइड शेयर कर दी है, फर्दर शेयर करने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही बता दी थी। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपने, मैं कोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इनरोलमेंट करवा ली है, और वो स्टूडेंट्स जो के चाहते हैं कि शायद सुन के उनको वो समझे कि हम इनरोलमेंट कराएं या ना कराएं। अगर आप चाहते हैं कि इनरोलमेंट कराना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है वो बड़ा एक लीथल माइंडसेट है।
मैं जो कहता हूँ कि भाई अगर मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मेरा ऑफिस में भी बड़ा काम होता है, लाइक आई जस्ट केम बैक टुडे एट 6 PM, कल मे बी आई रिटर्न एट 7 PM, लेकिन मैं 7 PM पे आके दोबारा अपनी क्लास लेता हूँ। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक फर्स्ट मेरा सेशन है इस ईयर का, तो मैं 3 डेज लेता हूँ। लेकिन जो रिमेनिंग सेशन जो बाकी आएंगे उसमें मैं 4 डेज भी ले लेता हूँ क्लास। तो वी हैव करंट अफेयर्स फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, एंड ये क्लासेस रेगुलर होगी। लाइक ऐसा नहीं है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं क्लास नहीं लूंगा। हाँ, कुछ अगर इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाए या असाइनमेंट आ जाए जो कि मैं रीशेड्यूल नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आई एम स्टिल एन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। और मेरी जो हमारी जॉब होती है वो 24/7 है। जो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया है उनको तो आइडिया होगा, जिनको नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम असिस्टेंट कमिश्नर एंड आई हैव अ 24/7 जॉब, एनी टाइम आई कैन गेट अ कॉल कि जी आपने इस जगह पे जाना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डील विद। तो वो एक एडवेंचर भी है, एक फटीग भी है, एक आप समझेंगे कि क्या हम एक दलदल के अंदर फंस गए हैं, बट दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपने इसी सर्विस के अंदर आना है, मतलब ऐसी ही सर्विसेज के अंदर आना है, तो आपको इसका पार्ट बनना पड़ेगा। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है, आई हैव मेंशन कि 15 लेक्चर्स होंगे, बट इट कैन एक्सटेंड एज वेल, क्योंकि इसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे। कुछ हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी ले सकते हैं ऑन एनी टॉपिक, या इसके अंदर कुछ लेक्चर्स भी शामिल हैं जो कि अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। जैसे ऐसे के ऊपर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई ऐसे टीचर्स हो के बेहतर जिनका एक्सपीरियंस है ऐसे के ऊपर, उनको इंगेज कर सकता हूँ कि भैया आप अगर बिगनर हैं तो आपको बता दिया जाए कि ऐसे किस तरह पढ़ा जाए। इसी तरह प्रेसी के ऊपर हम एक क्लास करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, जिनको मैं वर्कशॉप्स कहता हूँ, इस्लामियात के ऊपर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर। ठीक है। अब आई विल ट्राई कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वर्कशॉप स्टार्ट करें। फॉर दैट आई एम बिल्डिंग अ टीम। जो मुझे लगेगा कि कॉम्पिटेंट टीचर है मेरे पास, आई विल आस्क हिम और हर कि वो आपके साथ कुछ 2 सेंट्स शेयर करें। तो ये दोनों की जो हमारी वीक है वो 6 वीक्स की है। और ऑफिशियली आप इसको कंसीडर करें कि नेक्स्ट मंडे से हम रेगुलर शुरू करेंगे। कल वाली क्लास भी होगी, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे। तो कल वाली क्लास में मैं अगर आपको इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान करंट अफेयर्स को पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और पाकिस्तान अफेयर्स वालों के साथ मैं अपना शेड्यूल सेपरेटली शेयर कर दूंगा कि हमने ये चीजें करनी है। अच्छा, अब जो मेथडोलॉजी है मेरी वो क्या है, वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मेरे जो लेक्चर होंगे, जिस तरह आपको अभी स्लाइड नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, तो इसी तरह की ही प्रेजेंटेशंस के ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ। लाइक एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन होती है टॉपिक के ऊपर। मैं लिखूंगा नहीं क्लास के अंदर, हाँ मैं लिखूंगा, जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे अभी मैं एनोटेशन कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपको समझाने के लिए कोई मैप ड्रॉ कर सकता हूँ, या कुछ ऐसी चीजें जिसमें मैं आपको इंगेज कर सकता हूँ कि जी बताएं फैक्टर्स क्या हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, तो कुछ आप उसमें इनपुट करेंगे, वो मैं साइड पे लिख लूंगा। तो ये चीजें मोस्टली हमारे एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। और ये जो स्लाइड्स हैं पीपीटी, ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी। आपको ये एक्सेस रहेगी आपके Feb 2026 तक, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट ईयर वालों की अभी तक एक्सेस रिमूव नहीं की। अगर मैं देखूंगा कि जरूरत है तो मैं रिमूव कर दूंगा, बट जो ऑफिशियल मेरा, आपको हमने रजिस्ट्रेशन से पहले भी कहा था, और उसके अंदर सारी डिटेल्स यही मेंशन है, अगर आप फॉर्म देखेंगे कि ये एक्सेस Feb 2026 तक रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट को इशू है कि जी ये लाइफ टाइम रहनी चाहिए, तो वो कांटेक्ट कर ले कोऑर्डिनेटर से, और जो भी चीजें उसको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है गूगल क्लासरूम, वो हम यूज करते हैं। गूगल क्लासरूम इज जस्ट अ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन जिसके ऊपर आपको सारा डाटा एक जगह पे मिल जाता है, और वहां पे ही आप चीजों को, एक आपके जो स्लाइड्स हैं, आपकी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है, वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको सेपरेटली व्हाट्सएप पे शेयर करें और उसको फाइंड करें। अब मैं आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ, एक अपना एक गूगल क्लासरूम, जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनको आइडिया नहीं है, उनको थोड़ा सा इंगेज करने के लिए, बताने के लिए। अच्छा जी, देखें ये मेरा लास्ट बैच जो था, करंट अफेयर्स 25 बैच 3, तो उसमें ये एक गूगल क्लासरूम ये ओपन हो जाता है। इसकी एक एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड वालों के लिए अलग एप्लीकेशन है, आईफोन यूजर्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशन है मोबाइल पे। जो ईमेल आईडी आपने मेरे साथ शेयर किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको इसका लिंक मौसूल हो जाएगा कल तक। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे वो उसको ओपन करेंगे। वंस यू ओपन द लिंक,
it is available with you and it will remain there on your Google Classroom app. तो for example, if it is a current affairs class, तो you will go to the classwork स्ट्रीम पे आप देख सकते हैं कि जी इसमें टाइम के साथ लाइक मैंने 4 फेब को क्या शेयर किया, फेब 1 को क्या शेयर किया, वट एवर इट इज। एंड देन क्लास वर्क में टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे कि भाई ये टॉपिक्स हमने करा दिया। लेट्स से आप देखते हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस क्या है, you will go to Middle East crisis and you will find the PDF material over there and you will also find the YouTube link। तो YouTube आपने मेक श्योर करनी है कि जो ईमेल आईडी आपने गूगल क्लासरूम के लिए मुझे दिया है वो सेम ईमेल आईडी से ही YouTube के अंदर साइन इन होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की YouTube आईडी साइन इन नहीं होती या डिफरेंट ईमेल से होती है तो उनको वीडियो शेयर नहीं होगी, वो प्राइवेट शो होगी। तो ये वीडियो मैं YouTube के थ्रू शेयर करता हूँ, बट यू हैव टू साइन इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल ऑन योर यूट्यूब। ठीक है, तो इस तरह ये आपके साथ शेयर हो जाएगी और चीजें चल जाएंगी। ठीक है जी। तो आई हैव जस्ट शेयर कि हम किस तरह अपना लेक्चर लेके जाएंगे, तो इससे आपकी कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि भाई अब हमारे पास डाटा अवेलेबल है, स्लाइड्स अवेलेबल है, तो क्लास के अंदर लिखने की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाती है। और वो मैं नहीं चाहता कि आप क्लास के अंदर लिखते रहें। यस, एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप लिख लें, लेकिन क्लास के अंदर आप अंडरस्टैंड करें, समझें चीज़ों को। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप क्लास के अंदर जो सुन रहे होते हैं पेपर के अंदर ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। तो जो क्लास के अंदर समझने पे फोकस करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो आप रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं उसको दोबारा, या एट द एंड ऑफ द क्लास आप क्वेश्चन उसको कर सकते हैं। जी, अभी तक सारा ठीक चल रहा है, समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो गए आप लोग? आप काइंडली मैसेज की कर दें, उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा, इफ स्टिल एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, तो आप इस नंबर पे आपको लिखा हुआ है, आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और हमारी जो फीस है दैट इज 7.5K पर सब्जेक्ट, और इसके अंदर कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई हम लंडे की चीज़ नहीं बेच रहे कि आप इसको इस तरह कर दें। लाइक सॉरी टू से बट सम स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली कि भाई हम इस पे निगोशिएट करें। इट्स नॉट माई टास्क, इट्स द वर्क ऑफ एडमिन। अच्छा, उसके बाद हम देखें हाउ टू स्कोर 60+। अब 60+ मैंने क्यों कहा कि भाई लास्ट ईयर तो 70+ भी आया CSS स्पेशल वालों के नंबर करंट अफेयर में, लेकिन उससे पहले 50 भी लेना मुश्किल हो जाता था। तो हर दफा एक डिफरेंट जो है ना वो एग्जामिनर का माइंडसेट है कि भाई ये सब्जेक्ट मैंने टारगेट करना है या दूसरा सब्जेक्ट मैंने टारगेट करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करता है, इसका हमारा उससे लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हमने किस तरह इसको करते हैं। करंट अफेयर में कौन सी चीजें होती हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में। करंट अफेयर में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि भाई हम तो खुद ही तैयार कर लेंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले आपका कंटेंट होना चाहिए अच्छा, आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए। अभी मैं आपके साथ पास्ट पेपर जो 2025 का वो मैं शेयर करूंगा, और बड़े उसने एक अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, थोड़े से सिंपल भी थे, लेकिन उसने एंड पे कहा था कि इसको सपोर्ट करें बाय सम रेलिवेंट डाटा। तो वो स्टैट्स की बात कर रहा है, डाटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि यार क्रैमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम पेपर प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि मैप्स का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक सिंपली ड्रॉइंग द मैप, इट्स लाइक यूटिलाइजिंग द मैप इन योर पेपर। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपको मैप बनाना आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये देखें हमें तो पाकिस्तान का मैप बनाना आता है, तो हम तो बड़ा अच्छा ये पेपर के अंदर बना देंगे और हमारे बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं, मैप नहीं आपने खाली बनाना, आप इसके ऊपर बताएं कि भाई अगर केनाल इशू है तो केनाल इशू क्यों है, अगर यहाँ से आपका जो वो आ रहा है इंडस, तो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अगर डाइवर्जन होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा सिंध के अंदर रहने वालों को। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर यहाँ पे हरियाली हो जाएगी तो इस जगह के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपको मैप के ऊपर इंगेज करना है अपने एग्जामिनर को, इट्स नॉट ओनली सिंपली ड्रॉइंग द मैप। ठीक है, उसके बाद टेबल्स ड्रॉ करने हैं डिफरेंट चीजों के लिए, वी विल एक्सप्लेन। प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, देयर इज अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। मैं हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन पे बड़ा एक स्पेशल फोकस देता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे से, वो कहते हैं कि सर आपका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मसला एक ये है कि ये कंटेंट सारे स्टूडेंट्स के पास होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि जिनके कुछ एथिक्स या मोरल्स का कुछ इशू है, तो वो आगे भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनके अपने एथिक्स और उनके अपने मोरल्स हैं, कितने वो अपराइट हैं,
और किस सर्विस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, और उनका इंटेंशन भी यही हो सकता है। तो स्पेशल फोकस हमारा होता है पेपर प्रेजेंटेशन पे। अब लेट से जितने भी अभी लेट से वी हैव 241 स्टूडेंट्स राइट नाउ, और 241 स्टूडेंट्स के पास सेम मटेरियल चला गया, लेकिन 241 पेपर्स जो आएंगे वो डिफरेंट होंगे। एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज योर आर्ट, दैट इज योर एक्सपर्टीज एंड दैट इज योर स्किल। तो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि भाई मेरा मटेरियल सेम है और उसका सेम नहीं होना चाहिए। मटेरियल चाहे सेम हो जाए, बट दिस इज द थिंग, you need to give special focus on paper presentation. You need to work on it from day one. It's not like कि आप दिसंबर के ऊपर इसके अंदर काम करना शुरू कर देंगे, नो। आप जो हमने इस सेशन के अंदर 2 मॉक्स एग्जाम जो है वो मैंने ऐड किए हैं, उसका पर्पस यही है कि आप अगर करंट अफेयर या पाक अफेयर के 2 मॉक दे देंगे, दैट इज इनफ। आप सिंपल जनवरी के अंदर जाके दोबारा मॉक दे दें और आपके दोनों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको लिखने का तरीका पता लग जाएगा कि हमने करंट अफेयर का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर हमने ऐड करनी है, कौन सी चीजें हैं जो हमने अवॉइड करनी है। सिंपल सेम इज द केस विद पाकिस्तान अफेयर्स। इन पाकिस्तान अफेयर्स द स्ट्रेटजी इज लिटिल बिट डिफरेंट। You have to give focus more on quotes, on historical linkages, and these headers and intros, which are little bit same as of your current affairs. लेकिन हिस्टोरिकल लिंकेजेस और कोर्ट्स में पाकिस्तान अफेयर्स थोड़ा सा एक डिफरेंट है। हिस्टोरिकल डाटा हमने डालना है और उसके क्वेश्चन स्टाइल भी डिफरेंट है, अभी हम वो देखेंगे। तो ये चीज है जो कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के अंदर मैटर कर रही होती है। अब अगर हम पास्ट पेपर्स के ऊपर चले जाएं, और अगर मैं आपको पास्ट पेपर शेयर करूं इन दोनों सब्जेक्ट्स के, स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का जो इस साल का पेपर था, इट्स वेरी लाइक, मुझे तो बड़ा इजी लगा क्योंकि मैंने काफी मुश्किल पेपर टॉपिक्स स्टूडेंट्स को दिए थे। अच्छा, अब इसके अंदर उसने पूछ लिया, वेट व्हाट पेपर इज दिस, दिस इज करंट अफेयर्स, यस। अब इसने एथनिक इश्यूज पूछ लिया पाकिस्तान के, क्या ये सीरियस थ्रेट है नेशनल इंटीग्रेशन का। आप अपने आंसर को रेफरेंस दें वेरियस स्कॉलरी एविडेंसेस एंड सजेस्ट योर रिकमेंडेशन टू डील विद इट। अब स्कॉलरी एविडेंसेस का मतलब ये है कि आप बुक्स के रेफरेंस दे दें, ठीक है, या आप ऑथर्स के रेफरेंस दे दें, या आप डिफरेंट स्टैट्स या फिगर्स यूज कर लें। जिस तरह आप एक आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, उनके आप रेफरेंस दें। खाली जुबानी कलाम में बातें ना करें कि जी पाकिस्तान चूंकि एक डाइवर्स हिस्ट्री की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, हमारे डिफरेंट यूनिट्स थे जो कि डिफरेंट रेन के अंदर रहे, डिफरेंट लीडरशिप के अंदर रहे, इस वजह से एथनिसिटी का इशू है। दैट इज absurd, दैट इज टोटली लाइक नॉट रिकमेंडेड। यू हैव टू गिव रेफरेंसेस। और ये बेसिकली मैंने पाक अफेयर में करवाया था, लेकिन उन्होंने करंट अफेयर्स का पूछ लिया, सो नो इश्यूज। जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पाक अफेयर भी किया था, तो उनके लिए चीजें आसान हो गई होंगी। उसके बाद ये इशू दोबारा भी पूछ लिया उसने इकोनॉमिक इश्यूज से। कहता है कि जी डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर फ्रेजिलिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड सजेस्ट सम pragmatic measures for ensuring smooth and sustainable economic growth। तो अगेन दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अपने जो मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स थे जो हम मॉक्स कंडक्ट करते थे, मॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन हो ना हो, ये क्वेश्चन तो लाजमी होता है। और इस पे ही हम मोस्टली, मैं अपना सेशन भी इसी टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। तो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन इसको आपने सब्सटेंशिएट करना था, ठीक है। यानी आपने इस आंसर को, अब देखिए इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है हर स्टूडेंट ने तैयार किया होगा। what makes you different is the content you have and the way you write in your paper, the way you deliver your content, and that is what matters in the exam। तो ये स्टूडेंट्स ने बड़ा इजी इसको आई थिंक होपफुली किया होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, अब दोनों के साथ उसने पूछ लिया, दोनों इशू हमने डिस्कस किए थे, कौन से सिक्योरिटी इश्यूज हैं दोनों के साथ आते हैं। अब आप इसको स्कॉलरी एविडेंसेस, यानी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस दे दें, कोई करंट आप ऐसा कोई दोनों के अंदर हुआ हो, जैसे हाई लेवल डेलीगेशन जाते हैं, कोई एम्बेसडर्स की कोर्ट्स हैं, या हिस्टोरिकल कोई कोर्ट्स हैं, या कोई रेलिवेंट इसमें डाटा है जो कि स्लाइड्स में गिवन होता है, आप उनको आप इसमें आपने यूज करना था। तो इसके ऊपर इस दफा बड़ा टॉपिक एग्जामिनर का फोकस रहा है कि स्कॉलरी एविडेंस दें, यानी आप एक डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करें। उसके बाद उसने पूछा नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम NPR and discuss the prospects of their success with reference to India-US strategic partnership। And sadly this was the topic जो कि मैंने कवर नहीं कराया था।
तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ये कवर कराया था, मैंने ये कवर नहीं कराया था, मैंने न्यूक्लियर टॉक्स वाला करवाया था और इसके ऊपर मैंने स्लाइड शेयर की थी। तो एक तरह से कवर हो गया था, लेकिन ये मैंने कवर नहीं करवाया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हमारा रह गया था। एससीओ ब्रिक्स हमने कवर करवाया था सेम एज इट इज। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर आर्म रेस, इसके ऊपर हमारा स्पेसिफिक लेक्चर था। फिर उसके बाद डिस्कस द रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान, सो इट वाज द सेम एज वी कवर्ड इन क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। तो जो क्राइसिस थे क्लाइमेट चेंज के, जो फैक्टर्स बने, वो सारे हमने कवर किए हुए थे। तो इफ वी जस्ट एनालाइज, सो आई कवर्ड 6 out of 7 क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स इन माय प्रीवियस ईयर बैचेस। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन एनपीआर जो कि मैंने कहा कि भाई ये तो टेक्निकल है, आईआर का टॉपिक है, इसमें नहीं आएगा, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टच इट। लेकिन उसने पूछ लिया। इट्स दैट इज व्हाई वी से कि ये थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बट अगेन अच्छा क्वेश्चन था। तो 6 to 7 क्वेश्चन, 6 out of 7 जो है वो मैंने लास्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स को एज इट इज एक्सप्लेन किए हुए थे, टॉपिक्स शेयर किए हुए थे। तो यही चीजें आएंगी दोबारा। अब देखें करंट चीजें क्या है। उसने इसमें नहीं पूछा कि यार यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर क्या है, इस साल पूछ सकता है क्योंकि यही बर्निंग टॉपिक है। अब गजा का उसने प्रीवियस ईयर पूछा था, इस साल दोबारा पूछ सकता है क्योंकि सीज फायर हुआ, उसके बाद दोबारा सीज फायर खत्म हो गया। फिर सऊदीया का इंटरेस्ट क्या है, मिडिल ईस्टर्न जो उसके अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, सीरिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हुथीज का रोल क्या है, ईरान और यूएस की जो दोबारा से टॉक्स चल रही हैं और न्यूक्लियर जो उसका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं जो कि आएंगे वो हम सारे कवर करते जाएंगे। डोमेस्टिकली देखें, कैनाल इशू, वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगेन इकोनॉमी, इसकी कोई भी डोमेन पूछ सकता है कि भाई बताएं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को कैसे आप इसको कर सकते हैं प्राइवेटाइज, या आईएमएफ प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। तो डिफरेंट डोमेन है, जैसे पाकिस्तान के रिलेशन है यूएस के साथ, अफगानिस्तान, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हम आपको इन सारे क्वेश्चन से, डिफरेंट डोमेन से इसको इक्विप करेंगे ताकि आप पेपर के अंदर जाके एक अच्छा परफॉर्म कर सके। ये हो गया करंट अफेयर्स का। अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर आ जाएं, तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, इट्स नॉट शोइंग देयर। तो अच्छा सॉरी, यहाँ से श्योर है। तो दिस इज पाकिस्तान अफेयर्स पेपर, आई थिंक दिस वाज ऑफ 2024। 2025 का मैंने शेयर नहीं किया यहाँ पे, फॉर सम रीजन आई थॉट इट इज मिस्ड। लेट मी शेयर विद यू। तो 2025 का जो पेपर था, दैट इज ऑल्सो इजी, इतना मुश्किल नहीं था पाक अफेयर का भी। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कौन से डोमेन से पूछा था। अच्छा जी, ये पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का। तो उसमें उसने पूछा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी का पूछा, जो कि हमने एक्सटेंसिवली कवर किया था अपने लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो, वाटर इश्यूज वाले में। फिर एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो जो हमारे पोस्ट पार्टीशन के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लेक्चर थे उसके अंदर ये कवर हुआ हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन के भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी। अब ऐसे स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या शेयर करें अपने थॉट्स, जिन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तान अफेयर्स किया था। तो सेम चीज हमने कवर की हुई थी अपने पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स में। हर मैंने मेजर प्रेसिडेंट की, चाहे जिया हो, भुट्टो हो, अयूब खान हो, इनकी हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज और डोमेस्टिक चीजें क्या थी पॉलिटिक्स की, वो हमने डिटेल से डिस्कस की थी। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई वो कुछ ना कुछ पूछ सकता है कभी भी, तो हमने उसको कवर किया हुआ था। इट वॉज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो 3 क्वेश्चन उसने पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से किया है, जो कि 1947 से आपकी 2008 तक बनती हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री की आगे वाली चीजें करंट डायनामिक्स में आ जाती हैं। तो ये चीजें हमने बड़ी डिटेल से कवर की थी और 3 क्वेश्चन उसने पूछे। सीपैक का पूछा, जो कि हमेशा पूछता रहता है मोस्टली ऑन एंड ऑफ। फिर कश्मीर डिस्प्यूट का पूछ लिया, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। और मीडिया का पूछ लिया। अब ये वो चीज थी जो कि मैंने कवर नहीं करवाई थी, मैं थोड़ी सी कवर करवाई थी, ज्यादा कवर नहीं करवाई थी, इसके ऊपर मैंने एक्सटेंसिव चीजें शेयर नहीं की थी। तो अगर आप देखिए अगेन, इसमें से भी 6 out of 7 क्वेश्चन मैंने डिटेल से शेयर किए हुए थे। तो जो स्टूडेंट जिनको आइडिया होगा, तो वो कहेगा कि यार अनएक्सपेक्टेड पेपर तो था, लेकिन हमने इसको बड़ा इजीली टैकल कर लिया।
क्योंकि ये वो क्वेश्चंस इस दफा उसने पूछे whom no one was expecting। आपने मेजर इश्यूज फोकस कर रहे थे, पाक अफगान रिलेशंस, पाक इंडिया रिलेशंस, फिर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज, ठीक है, जो भी हाईलाइट करें आप उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये तो बड़े उसने अनएक्सपेक्टेड से, अनऑर्थोडॉक्स से क्वेश्चन पूछ लिए और बड़े सिंपल से। तो भाई पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स है, इसके अंदर हमने सारा सिलेबस ही कवर करना होता है। तो इस वजह से उसने क्वेश्चन पूछे और हमें आते थे, तो इस वजह से आपने मोस्टली स्टूडेंट्स ने इनको, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसको अच्छा कवर किया होगा। तो आप देखें कि भाई अब उसने सेपरेट कर दिया, पाक अफेयर करंट अफेयर डिफरेंट हो गया। पहले पूछते थे यार कि करंट अफेयर वाली चीजें पाक अफेयर में आ जाती हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स पाकिस्तान अफेयर्स को स्किप कर देते थे, इसके ऊपर फोकस नहीं करते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर से अगर आप देखें, अगर आप नीचे वाला पेपर भी देखें 2024 वाला, तो उसमें भी उसने डिफरेंट चीजें पूछी, ठीक है। तो इट मीन्स के डिफरेंट जो है वो पेपर आने लग गया पाकिस्तान अफेयर का, और पाकिस्तान अफेयर का वाकई पाकिस्तान अफेयर की तरह पेपर आने लग गया। अब कोई ऐसा पेपर नहीं रहा कि आप उसको करंट अफेयर कर लेंगे और पाकिस्तान अफेयर को स्किप कर देंगे, दैट विल नॉट वर्क एनी मोर। अब जैसे ये देखें, इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पूछा 2024 में, 2024 में थर्ड क्वेश्चन उसने रिफॉर्मर्स का पूछ लिया, जो कि प्री हिस्ट्री से आ गया। फिर डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस पूछा, बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। फिर ग्लोबल वार्मिंग, अब उसने 2024 में पूछा ग्लोबल वार्मिंग का करंट पाकिस्तान अफेयर में, 2025 में यही टॉपिक उसने करंट अफेयर्स में पूछ लिया एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के नाम से। तो टॉपिक सेम है, डोमेन्स डिफरेंट हो गई हैं, स्पेसिफिक हो गई हैं, तो हम सारे डोमेन से करेंगे जिससे आपको इशू नहीं रहेगा। फिर उसके बाद उसने दोबारा पूछा कि जी एथनिक रीजन्स को किस तरह पाकिस्तान इसको कंट्रोल करे, तो उसने 2025 में यही चीज करंट अफेयर में पूछ ली। तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक को फोकस करें और एक को छोड़ दें और आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने दोनों के सिलेबस को कवर करना है और दोनों बड़े अच्छे आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह नेशनल इंटीग्रेशन पूछा, सिविल मिलिट्री रिलेशन पूछा, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए थे। सो दैट वाज वेरी इजी। तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर इज नाउ बिकमिंग अ पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर 2026 में पाकिस्तान अफेयर्स जैसा ही रहे, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि एफपीएससी ऑलवेज गिव्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज। सरप्राइजेस से भरी पड़ी हैं चीजें एमसीक्यूज में। जो नन ऑफ दीज वाली सरप्राइज उसने 2020 में दी थी, आई स्टिल रिमेंबर इट, कि भाई 10 से 11 एमसीक्यूज के आंसर ही नन ऑफ दीज होते थे। तो हमेशा इसका ट्रेंड चेंज होता रहता है। प्रीवियस ट्रेंड्स को हम फॉलो जरूर करेंगे, उसको प्रिपेयर लाजमी करेंगे, बट आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर किया जाए, आपने सारा सिलेबस कवर करना है। और हम इन 6 वीक्स के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करवा देंगे, एंड देन इट्स योर टास्क कि आप उसको कैसे आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर लेता हूँ। अब ये मैंने पास पेपर एनालिसिस आप लोगों के लिए कर दिया। नाउ लेट्स जंप टू द रोड मैप फॉर सीएसएस 2026। रोड मैप की बात करें या स्टडी प्लान की बात करें। अच्छा, अब स्टडी प्लान ऐसे ही है जो कि आपको अवेलेबल होता है डिफरेंट पोस्टिंग, क्योंकि मैं खुद, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसको एक्टिव रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल है उसको एक्टिव रखना, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ सोशल पर्सन जो कि एक सेलिब्रिटी के तौर पे आपको एंगेज करता रहे। यस, वी हैव सीएसपीज हु आर सेलिब्रिटीज एंड दे आर डूइंग फाइन, बट आई एम नॉट लाइक दैट। तो बड़ा मुश्किल होता है एक पेज को मैनेज करना। बट व्हेन आई सी डिफरेंट सीएसएस रिलेटेड पेज, सो आई फाइंड अ लॉट ऑफ पोस्ट कि भाई ये है आपका स्टडी प्लान, कमेंट करें, हम आपको स्टडी प्लान शेयर करते हैं। तो भाई अगर आप स्टडी प्लान ही दूसरों से मांग के कर रहे हैं, तो सीएसएस करने का क्या फायदा है कि आप अपनी चीज खुद नहीं बना सकते। ये ऐसी एग्जांपल होगी कि आप एक डिस्पेंसरी में जाते हैं और आप कहते हैं मुझे भाई खांसी लगी है या मुझे बुखार हुआ है, एक पैनाडोल दे दो। तो पैनाडोल हर मर्ज का दवा, हर मर्ज की दवा नहीं है। मतलब इट शुड बी स्पेसिफिक फॉर एवरी पर्सन, एवरी एस्पायरेंट शुड हैव अ सेपरेट, अ यूनिक, a personalized kind of study plan. But as you are beginner, आपको चीजें समझ आने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल है, या कुछ चीजें आपको समझ नहीं आती, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू मैंने दिया है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू फॉलो इट, बट इट्स लाइक इट इज अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपना बना के, अपना डेवलप करके, ठीक है। तो स्टडी प्लान वही होगा जो आपने बनाया होगा। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टिप्स शेयर कर रहा हूँ, ये एक ऐसा, एक आपको एक मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर इन इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करके आप एक अपना स्टडी प्लान कस्टमाइज बना सकते हैं। 2 मंथ्स का मैंने इसमें शेयर किया है। अच्छा, दो चीजें हैं अभी से आपने फॉलो करनी है कि भाई इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर ऐसी चीज है कि अभी तक मेरे
इश्यूज निकलते रहते हैं ग्रामर के अंदर कि यार अच्छा इस वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आना था, या इसके साथ ये कंजक्शन आनी है, या इसके साथ हमने जो कोमा है वो किस तरह यूज करना है, या इसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें कैसे पता लगेंगी? इसकी प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस करें। यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर ऑन योर डेली बेस। प्रेसी एक ऐसा पेपर है जो इस दफा उसने चैट जीपीटी से बनाया है। इट्स लाइक इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि यार ये कैसा पेपर है। मतलब आई वॉज इवन नॉट एबल टू रीड द फुल प्रेसी, मैं गुम हो गया था। आई वॉज ट्राइंग टू रीड इट बट आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। चलो मैं तो एस्पायरेंट नहीं हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है कॉन्सेंट्रेट करने की, लेकिन आप सबको तो है ना। आप तो हैं एस्पायरेंट और आपने पेपर देना है, शुक्र है मैंने नहीं देना। कई दफा मुझे ख्वाब ऐसा आता है कि मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ आप सबको, इंगेज रहता हूँ इस चीज़ों से, तो समटाइम्स आई ड्रीम लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस और मेरी थर्ड अटेम्प्ट है, और मैं जो है वो मेरी मे बी एजुकेशन नहीं हुई, या मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। सो ये चीज़ें अभी भी मेरे माइंड में चल रही हैं यार। फिर मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं तो एसी लगा हूँ, मेरा तो वाकई 18th पोजीशन है। आई जस्ट कंफर्म इट। सो दिस हैपेंस विद मी। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट is happening with you all and what's going on in your mind. That is a very normal thing, that is a very predictable thing. तो आपने इंग्लिश ग्रामर को लेके चलना है अपने साथ डेली की बेस पे। पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें, इडियम्स कर लें, प्रेपोजिशन कर लें, वोकैबलरी के कुछ इसमें वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, इनको डिफरेंट आप अपने टाइम टेबल में सेट करके फिर न्यूज़पेपर को आपने रीड करना है। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम न्यूज़पेपर को कैसे रीड करेंगे। बट आप जो बेसिक चीजें हैं, एडिटोरियल और आर्टिकल्स, जो बिल्कुल ही बिगिनर स्टूडेंट है तो वो इसके ऊपर फोकस करें कि यार आप जो है ना आर्टिकल्स पढ़ें और एडिटोरियल्स पढ़ें। अब किसी ने पूछा इंग्लिश ग्रामर के लिए सोर्स, तो इंटरनेट इज फुल विद इट। मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल हैं इंग्लिश ग्रामर पे, कारवान की ले लें, वर्ल्ड टाइम की ले लें, एनी वन बुक यू कैन टेक इट। इंटरनेशनल ऑथर्स की ले लें, रेन एंड मार्टिन की ले लें, जस्ट फॉलो इट, ठीक है। अच्छा ये आपने न्यूज़पेपर रीडिंग 30 to 45 मिनट्स जो अभी के लिए है, लाइक ट्राई करें कि 30 मिनट्स के अंदर रैप अप करें। डेली मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, उसको फोकस करता हूँ, उसको फॉलो करके सोता हूँ, चाहे मैं सोने से पहले एक दफा देख लूँ कि यार मेन हेडिंग्स कौन सी है। यहाँ पे आई एम सर्विंग इन मेहरापुर, यहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं था, बट आई हैव मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स के ये मेरे पास जो है अवेलेबल हो हार्ड फॉर्म के अंदर। तो ट्राई करें कि इसको हार्ड फॉर्म के अंदर रीड करें। अच्छा शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी रीड किया जा सकता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता उसका। न्यूज़पेपर की जो एक फीलिंग है, जो एक आपकी हैबिट है, वो नहीं बनती। सो मेक इट अ हैबिट, नॉट अ कंपल्शन। हैबिट करेंगे आपको एक ईजी लगेगा न्यूज़पेपर रीड करना, एक इंजॉय करेंगे। You'll make it a compulsion and then you will not able to read the newspaper fully. You will not able to understand it. So make it as your habit. ठीक है। Maintain a fact book, either handwritten or on word. मेरी यार फैक्ट बुक जो थी वो हैंड रिटन होती थी। अब फैक्ट बुक क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कल की न्यूज़पेपर किसी ने रीड की हो, जिसके अंदर एक येलो पेपर आए थे, तो उसके अंदर बड़ा अच्छा कंपैरिजन था कि भाई ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ना, इसमें इंडिया को क्या फायदा हो रहा है और पाकिस्तान क्या अपॉर्चुनिटीज लॉस कर रहा है। तो उसके अंदर कुछ स्टैट्स थे। तो मेरे जैसा बंदा हो कि मैं तो कहूँ यार यही स्टैट जो है ना, मैंने अब ट्रेड वॉर के लिए मेरे रेडी हो गए हैं। तो आप इस तरह न्यूज़पेपर रीड करें, फॉलो करें। कुछ हार्ड कोर स्टैट्स आपको लगते हैं कि यार ये तो मैं अपने एनालिसिस के अंदर यूज कर सकता हूँ, या ये इस टॉपिक के अंदर यूज हो सकता है, तो फैक्ट बुक बना लें और उसके डिफरेंट पोर्शंस करें। लेट्स से उसका इंटरनेशनल पोर्शन कर लें जिसमें मल्टीपल डोमेन्स हो, जैसे यूएस वर्सेस चाइना आ गया आजकल, बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप मिडल ईस्ट लिख लें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्लाइमेट चेंज है एक मेन टॉपिक है, वो ऐड कर दें। फिर ग्लोबल इकोनॉमी, जो एक रिसेशन आ रही है, मतलब जो प्रिडिक्ट की जा सकती है, वो एक आप लिख लें। इसी तरह जो भी न्यू डेवलपमेंट है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, या एक यूरोपियन यूनियन के अंदर व्हाट इज हैपनिंग विद द मुस्लिम्स, इमिग्रेशन के साथ क्या कर रहे हैं, या इस तरह की जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स है, उसके ऊपर एक डिफरेंट हेडर्स ऐड कर दें, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी अच्छी फैक्ट बुक जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसी तरह डोमेस्टिक कर लें। अब डोमेस्टिक में आप कौन से टॉपिक ऐड करें भाई? डोमेस्टिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं। हेडिंग्स देखें न्यूज़पेपर की, आपको टॉपिक्स आइडिया होता जाएगा कि जैसे क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, फिर पाकिस्तान की पॉवर्टी का डाटा आ जाता है, फिर पाकिस्तान की कभी एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल अच्छा मिल जाता है आपको, फिर कभी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मिल जाता है, फिर इसी तरह कभी आपको आईएमएफ के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस दे देता है,
कभी वो आपको पाक के रिलेशंस के ऊपर बता देता है, यूएस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और वट एवर योर नेबर्स आर। तो डिफरेंट आप इसके कंपार्टमेंट्स बना लें और आप इसको फॉलो करते रहें न्यूज़पेपर को, इसके अंदर आप चीज़ें ऐड करते रहें। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी यही चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी कि आपको कोई रेडीमेड मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ, लेट्स से अगर मैंने आपको कोई टॉपिक कवर करवा दिया है उसके नोट्स बनाए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप स्लाइड्स क्यों नहीं देते, आप पीडीएफ क्यों नहीं शेयर करते, प्रिंट करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाती है। लेकिन वो आपके लिए आसानी तो हो जाती है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं देती। नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, किसी और के नोट्स, किसी और की स्लाइड्स या रेडीमेड स्लाइड से आप तैयारी नहीं कर सकते। यस, पेपर के करीब वो आपको फायदा देती है, लेकिन राइट नाउ एट दिस टाइम व्हाई यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि आपकी जो अपनी चीजें हैं आपको समझ आएगी कि यार ये चीज मैं याद कर सकता हूँ, वो चीज याद नहीं कर सकता। तो खुद ही नोट्स बनाए आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट में ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मे बी आपको डबल टाइम लगे नोट्स बनाने पे, बट वंस यू कंटिन्यू विद इट 6 वीक्स के बाद आप देखेंगे कि ये तो नोट्स आपके बड़े एक अच्छे नोट्स बन गए हैं। इसके ऊपर सिर्फ आपने एडिशन करनी है, तो दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं जो है क्लास आऊं पढ़ाऊं और दैट्स फाइन खत्म हो गया। नो, मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको, आपने वंस यू हैव एनरोल्ड फॉर दिस सेशन दे विल कंटिन्यू फॉर द ईयर लॉन्ग। ये 6 वीक्स के अंदर आपकी जो कमिटमेंट मैंने की हुई है कि भाई हम लेक्चर कवर कर देंगे, सिलेबस से टॉपिक्स कवर कर देंगे, वो हो जाएंगे कवर। अब जैसे करंट अफेयर्स हैं उसके तो डेवलपमेंट आती रहती है। अब लेट से 2 महीने बाद कोई न्यू डेवलपमेंट आ गई, तो जो 2 महीने बाद मेरा न्यू बैच आएगा उसकी जो चीजें मैं उनके साथ शेयर करूंगा वो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। उनकी रिकॉर्डिंग उनके साथ भी शेयर होंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर होंगी। और ये चीजें चलती रहेंगी टिल जनवरी 2025, टिल माय लास्ट बैच। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ये तो टॉपिक हमारा रह गया है या ये न्यू ऐड हुआ है तो ये हम कैसे करेंगे। वो आप खुद ही आपका आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ कवर हो जाएगा। लेकिन अभी करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। अब जैसे मैं एस्पायरेंट होऊंगा तो मैं पैसों की वजह से नहीं, मेरे टाइम की वजह से, बिकॉज आई नो दैट माई टाइम इज वैल्यूएबल, व्हाई आई स्पेंड माई टाइम ऑन करंट अफेयर्स विच इज स्टिल अ डेवलपमेंट, विच इज स्टिल अ डेवलपिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और ये दिसंबर में जाके कहीं मेच्योर होता है हर साल का। तो मैं क्यों पढूं ये। तो अगर आप करंट अफेयर्स को देखें तो इट इज नॉट ओनली करंट अफेयर्स, it is half of your css. You get to know कि what is happening all around you. You get to know कि how to make an analysis. You get to know कि भाई न्यूज़पेपर में से कौन सी चीजें लेनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसी की वजह से तो आप ऐसे तैयार करते हैं। ऐसे के अंदर, चाहे ऐसे के अंदर वो टॉपिक आए ना आए, अब लास्ट ईयर उस ऐसे थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा कम बेस्ड, लेकिन 2024 के अंदर सारा ऐसे करंट अफेयर के ऊपर बेस कर रहा था। तो भाई करंट अफेयर आपको ना सिर्फ एक करंट अफेयर प्रिपेयर करता है, बल्कि आपका एक कंटेंट जो डिफरेंट मेंटोर कहते हैं ना कि आए हमारा ऐसे का सेशन नहीं, हम आपको कंटेंट देंगे। तो इफ यू जस्ट टेक करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर सेशन, बिलीव मी आपका जो ऐसे का कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। डिफरेंट डोमेन्स कुछ रह जाएंगी, लेकिन आपका जो एनालिसिस है बिल्ड करना, आपका फैक्ट्स यूज करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड वो प्रिपेयर हो जाएंगी। और जो इस दफा के हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको सिंपल जस्ट दे हैव टू फॉलो द थिंग्स एंड एट द एंड लाइक ईयर एंड तक उनकी पूरी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी एंड दे विल फील कंफर्टेबल कि भाई हमारी चीजें बहुत एक अच्छी तरीके से तैयार है। और इसमें ये चीज मैं नहीं कह रहा कि नेक्स्ट सेशन में दोबारा एनरोलमेंट करें। यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड एंड 2026 के लिए जितने भी नेक्स्ट सेशन आएंगे आप सारे उनका पार्ट होंगे। अगर हम बात करें कि जी ऐसे के अंदर क्यों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे कभी पढ़ाता था लेकिन अब नहीं पढ़ाता, क्योंकि ऐसे पढ़ाने के लिए पढ़ाया नहीं जा सकता, इसको अवेलुएट किया जाता है। और जो ऐसे पढ़ते हैं जाके वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने सीएसएस की जर्नी में, कि आप ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट रबिश थिंग। हाँ, बेसिक्स चीजें आप पढ़ लें, 1 2 3 4 लेक्चर्स आप पढ़ लें, बट यू आर गोइंग टू समवेयर एंड देन दे से कि भाई हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे। ऐसे तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, ऐसे तो प्रैक्टिस किया जाता है। और इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे के अंदर फ्रीक हो जाते हैं, फ्रीक आउट कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने पढ़ने पर फोकस किया होता है, लिखने के ऊपर फोकस नहीं किया होता। तो ऐसे को लिखें, इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हम अगर करंट अफेयर्स को लिंक करें ऐसे के साथ, तो इस दफा भी 2 3 टॉपिक्स ऐसे थे जिसके अंदर करंट अफेयर यूज हो रहा था। जैसे हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।
अब ये चीज आपको जब करंट अफेयर का पता होगा तो आप समझेंगे इसको। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान अफेयर्स का अगर आपको पता है तो आप कुछ इसके अंदर एग्जांपल्स बिल्ड कर सकेंगे। ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आपको करंट हैपनिंग्स का पता है कि भाई करंट हैपनिंग्स क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नॉलेज के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये वही चीज उसने इस तरह इसने घुमा फिरा के पूछ ली। ठीक है। रिफॉरेस्टेशन एज ग्लोबल अर्जेंसी। व्हाई रिफॉरेस्टेशन इज ग्लोबल अर्जेंसी? if you know what is happening in climate change, if you know why temperature is soaring high, what is global warming, why the sea water is rising, why the heat waves are coming so intense, weather pattern is becoming so unpredictable, जैसे इस्लामाबाद के अंदर 2-3 दिन पहले हुआ। तो अगर आप करंट अफेयर के साथ कुछ लिंक अप हैं तो आपकी बड़ी अच्छी एनालिसिस बिल्डअप हो जाएगा, एग्जांपल्स को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। तो दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन दीज टू सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ लाइन है। पूरे सब्जेक्ट्स ही सीएसएस के लाइफलाइन है फॉर योर एसे, बट दीज टू आर लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट, दे हैव लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंस ओवर अदर सब्जेक्ट्स। तो ये मेरा कुछ इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीज़ें थी जो मैंने शेयर करनी थी। सॉरी, मैं ऐसे शेयर कर रहा था जो कि आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। यहाँ पे दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गया है कि 3-4 ऐसे हैं जो कि आपके करंट अफेयर से लिंक कर रहे हैं। तो जिसने करंट अफेयर्स अच्छा किया होगा तो उसको एक माइंड के अंदर ये सेटिस्फेक्शन होगी कि यार एक ना एक टॉपिक ऐसा होगा जो कि करंट अफेयर से होगा, और मेरा अगर ये रेडी है तो मैं ऐसे बड़ा अच्छा लिख लूंगा। और पहला पेपर ही आपका ऐसे का अंदर। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रैप इट अप। अब हम आगे चलते हैं, आपको स्टडी प्लान फर्दर शेयर करते हैं आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें। डेली आपने 2 चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद ये प्लान है आपके मंथ का ऑफ मई। अगर आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर डेली लेके जा रहे हैं, आई हैव रिटन 2 2 hours फॉर इट, बट इट इज अगेन कस्टमाइजेबल। आप अगर करंट अफेयर 1 घंटे में तैयार कर लें, पाकिस्तान अफेयर पे 3 घंटे लगा लें। लेकिन आपने इस शेड्यूल से पहले अगर आपने एक मंथली शेड्यूल बनाना है, ठीक है, आपने एक मंथली शेड्यूल बनाना है, फिर आपने उसको डिवाइड करना है वीकली शेड्यूल में। जैसे आज संडे है, संडे को आराम करें, चिल करें, एंजॉय करें, हैंग आउट करें। तो संडे आप लेकिन संडे में एक और क्या कर लें कि नेक्स्ट वीक का आप एक शेड्यूल बना लें कि ये मेरा टारगेट है। अगर ये करंट अफेयर है तो मैंने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, पाकिस्तान अफेयर्स है तो ये टॉपिक करने हैं, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसका मैंने इतना पोर्शन सिलेबस का कवर करना है। देन इट्स योर कस्टमाइजेशन कि आप मंडे को कितना फोकस करते हैं टॉपिक को कवर करने के लिए, नेक्स्ट डेज में कितना करते हैं। सो इट्स अ सिंपल रैंडम थिंग जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपली इफ इट वाज मी, मैं इसको देखता एक आइडिया लेता लेकिन इसको फॉलो ना करता। मैं फॉलो वो करता जो कि मैं वीकली शेड्यूल बनाता हूँ। और जिस तरह मैंने स्टडी की थी मैं वीकली शेड्यूल बनाता था, क्योंकि 2018 में मेरी एक डिफरेंट माइंडसेट था तैयारी करने का, तब मैं नया था। 2020 में मुझे एक्सपीरियंस हो गया हुआ था। तो 2020 में हम क्या करते थे, जैसे क्रिमिनोलॉजी है तो हम वीक में कहते थे कि यार ये 4 सेक्शन है, इसके 2 सेक्शन हमने क्रिमिनोलॉजी के खत्म करनी है। आईआर है तो आईआर की ये थ्योरीज हमने कवर करनी है। अगर यूएस हिस्ट्री है तो मैंने उसका इतना पोर्शन कवर करना है। पंजाबी है तो मैंने उसको इतनी चीज़ों पर रट्टा लगाना है। तो ये मेरा अपना माइंडसेट होता था। यू हैव टू मेक योर ओन माइंडसेट, यू हैव टू मेक योर ओन शेड्यूल। और जो स्टूडेंट्स अपना शेड्यूल बनाते हैं वही कामयाब होते हैं, जो दूसरा का फॉलो करते हैं वो कामयाब तो हो जाते हैं, होने वाले हो जाते हैं, लेकिन वो एक एम्बिग्विटी का शिकार रहते हैं, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, और उन पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप इन चीज़ों को आगे लेके स्मूथली चल सकेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। ये एक थोड़ी सी एफर्ट की थी आप लोगों के लिए, आप इसको जस्ट फॉलो कर लीजिएगा। अब दैट्स ऑल। नाउ आई थिंक इट इज अ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। आई एम गोइंग टू ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस एंड आई विल गिव द आंसर्स। आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ माय वीडियो रिकॉर्डिंग, सॉरी वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन सबसे पहले आप हैंड रेज कर लें, या आप टेक्स्ट के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर the questions one by one. ठीक है जी। Now anyone who wants to leave they can leave, or anyone who still wants to join can join, and that is the concerned number. You can just text here and get any kind of queries जो कि हैं आपकी मेरे सेशन से रिलेटेड, वो रिजोल्व हो जाएंगी। We have first regular class from tomorrow
और उसकी टाइमिंग सेम है। करंट अफेयर्स की 7 PM पे स्टार्ट करूंगा और पाकिस्तान अफेयर्स की मैं 9 PM पे स्टार्ट करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द ब्रीफ ओरिएंटेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की, जो मैंने समझाया, डिलीवर करने की कोशिश की। आप कुछ बोर भी हुए होंगे, लेकिन कुछ को इंटरेक्टिव सेशन भी रहा होगा। तो थोड़ा सा फीडबैक भी बता दीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन आंसर ज़रा आपके लेता हूँ। तो आप कोशिश करें कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मैं रीनेम कर रहा हूँ कि उस होस्ट पे करें। टेक्स्ट हेयर होस्ट पे करें आप, ठीक है? दो आपको नज़र आ रहे होंगे, होस्ट एंड को होस्ट। ट्राई टू सेंड योर क्वेश्चंस इफ यू हैव इन चैट और टू टेक्स्ट हेयर होस्ट। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी अनम्यूटिंग Zahra Batul. जी Zahra, do you have any question? Please go on. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी जी, आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही? Yes, yes, I can hear you. Please continue. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी है, वर्ल्ड टाइम्स के भी है, फॉरेन पॉलिसी पे भी आ जाता है, एडिटोरियल्स भी होते हैं डॉन के, इसके अलावा वीडियोस भी होती हैं। सर इस तरह अगर हम इन चीज़ों को कवर करने लग जाए तो हमारा ज़्यादातर टाइम तो फिर इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा। हम इसको किस तरह टैकल करें? अच्छा, ज्यादातर टाइम इन्हीं चीजों पे गुजर जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले ये है कि आप इनको डेली ना रीड करें। जैसे फॉरेन अफेयर्स है, वो आता है 2 मंथ्स बाद आता है एक उसका मैगजीन, तो उसको देख लें। एक दो तीन चार टॉपिक ही होते हैं उसको रीड करने वाले, सारे नहीं होते। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट है, वो वीकली आता है। वीकली जो आता है तो उसमें भी एक या दो ही ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं, जो कि रेलिवेंट होते हैं। बाकी चीज़ों को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्ल्ड टाइम्स और बाकी जो हैं, यस उसमें कुछ अच्छा होता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा उसके जो कंटेंट है दैट इज़ नॉट लाइक अट्रैक्टिंग मी। क्यों मैं उसको क्यों रीड करूं? वाई आई स्पेंड सम टाइम ओवर देयर बिकॉज आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। तो आपने ये देखना है कि सिलेक्टिव आप कंटेंट रीड करें, सारे मैगजीन रीड ना करें, जो आपको सूटेबल हो वो रीड करें। और उसके बाद फिर आप एक टाइम फिक्स करें कि मैंने वीकली 2 आवर्स लेट से मैगजीन रीडिंग पे देने हैं, वट एवर मैगजीन यू रीड, और 3 आवर्स देने हैं। तो इसको आप अपने शेड्यूल के अंदर जो है वो फिक्स कर दें, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अली मर्दान, CA 26। जी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा, सलाम। जी जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये है कि न्यूज़पेपर में आपने कहा है कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा 45 मिनट्स या 1 घंटा हो। पर सर अगर हम्म। सिर्फ पढ़ना, पर अगर उसमें से मैं डेटा भी निकालता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और सिर्फ एडिटोरियल्स भी पढ़ें, तो सर टाइम तकरीबन 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब न्यूज़पेपर को अगर रफ एस्टिमेट भी किया जाए तो 2 घंटे सर, शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, आप आपके लेवल पे बिल्कुल स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे 30 से 40 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, अगर मैं इस लेवल पे होता। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इट शुड बी द आइडियल केस, ठीक है? आइडियल केस बताया मैंने आपको, एक जेनेरिक केस नहीं बताया। ठीक है। ठीक, दूसरा सर, ये तो सर मैंने अपना किया, लेकिन दूसरा सर सवाल ये था कि आपने कहा कि प्रिपेयर करते वक्त जो है वो लिमिट सेट करें फॉर रिसोर्सेज। मतलब सर हम्म। बुक्स वगैरह या नोट्स लिमिटेड रखें,
ज्यादा वास्ट रीडिंग नहीं करें, ये सर बिल्कुल मकसद लिमिट था। रखिए ताकि आप एक टाइम फॉलो करें ना कि यार मैंने ये सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस मैंने 2 महीने में खत्म करना है, तो आपने उसको कवर करना है 2 महीने में। आप चाहे उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज से करें या लिमिटेड रिसोर्सेज करें, इट्स योर टास्क, बट यू हैव टू फिक्स द लिमिट्स ताकि आप इसको चीज़ें आगे लेके जाएं, वरना यू विल स्टक ऑन वन प्लेस और आगे चीज़ें नहीं होंगी। करेक्ट सर, ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, समवन आस्क्ड मी के रिफॉर्म्स के ऊपर बताएं सीएसएस की। अच्छा, अभी जो रिसेंट अभी बातें चल रही थी रिफॉर्म्स की, तो अब वो हमारी एक है सीएसएस रिफॉर्म्स कमेटी बनी हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, वो इसको कर रही है फिक्स। तो उन्होंने रिसेंट जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये चीज़ें आई थी। लेकिन अगर अभी कोई रिफॉर्म्स आ भी गई तो सीएसएस 2026 के अंदर एटलीस्ट वो एप्लीकेबल नहीं है। सीएसएस 2026 सेम पैटर्न पे कंडक्ट होगा जो कि लास्ट लास्ट ईयर हुआ था, और नेक्स्ट ईयर में पॉसिबली है कि वो इसको लेके जाएं, रिफॉर्म्स लेके आएं, क्योंकि दैट इज द डिमांड ऑफ आईएमएफ एज वेल, दैट इज द डिमांड ऑफ एवरी स्टेक होल्डर जो कि आता है कि जी पाकिस्तान को ठीक करना है तो सबसे पहले जी रिफॉर्म्स करें इनकी ब्यूरोक्रेसी की। तो रिफॉर्म्स तो कभी ना कभी आनी है, जैसे भी हो वो गवर्नमेंट के ऊपर है, उन्होंने उसको डिसाइड करना है। लेकिन आप फोकस ट्राई करें जो एस्पायरेंट्स हैं कि जल्दी से जल्दी इसको अपीयर हों, वेट ना करें कि जी हम 10 साल बाद अपीयर होंगे या 5 साल बाद होंगे या 2 साल बाद होंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये रिफॉर्म्स आएंगी ही, ठीक है, जिस तरह की भी हों। जी मारिया, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने कहा और हमने सुना भी ऐसा ही है कि ऐसे जो है वो पूरा साल ही इवैल्यूएट होता रहता है, अ, जब भी आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से। बट सर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के से भी रिलेटेड मेरा यही क्वेश्चन है, क्या इसका जो भी इवैल्यूएशन होता है ये हम एंड ऑफ द व्हाटएवर प्रेपरेशन उसके टाइम पे फाइनल जो हम मॉक्स वगैरह देते हैं तब होती है, या फिर इसकी भी थ्रू आउट ही हमारी प्रेपरेशन के साथ साथ इवैल्यूएशन भी होती रहती है? अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स है, तो जैसे आपने कभी कोई सेशन ले लिया है या खुद ही तैयारी कर ली इसकी, तो वंस यू थिंक कि भाई मैं इसका रेडी हो गया हूँ, जैसे करंट अफेयर का मैं चीज़ें मैंने जो करंटली टॉपिक्स चल रहे हैं मैंने उनको रेडी कर लिया है, या पाकिस्तान अफेयर का मैंने सिलेबस कर लिया, देन यू गिव सम मॉक। मॉक आप साथ ही दें, जैसे कोई आपने कोई भी सब्जेक्ट कवर किया है तो मॉक उसके साथ ही दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी वीकनेसेस हैं, आपने उनको कैसे कवर करना है। एंड पे देंगे तो आपको एंड पे वीकनेसेस पता लगेंगी अपनी किसी भी सब्जेक्ट की, तो फिर आप उसको कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मॉक जैसे ही आपका सब्जेक्ट कभी भी आप कवर करें, इट्स नॉट लाइक कि मेरे साथ करें, जब भी जिसके साथ भी करें खुद भी करें, तो उसके बाद उसका एक मॉक दे दें और आपको वीकनेसेस पता लग जाए, और फिर उसके बाद आप चाहे जो लास्ट मॉक्स हैं वो दिसंबर में दें, जनवरी में दें, वेन एवर यू फील कंफर्टेबल। तो ये चीज़ें ओके हैं सर। इसकी। सर एक और सवाल था, आई डोंट नो इफ लाइक इट इज रेलेवेंट टू यू और नॉट। सर वो ये था कि अभी आई एम करंटली इन लाइक माय लास्ट सेमेस्टर इज जस्ट 1 मंथ लेफ्ट। तो सर मुझे अभी हम्म। से लाइक आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक फॉर्मली सारा टाइम इसको डिवोट करके सीएसएस को इन आफ्टर लाइक जून। बट क्या मैं ये वाले सेशन में एनरोल कर लूँ एंड इट विल लाइक आई कैन डू इट? इट डिपेंड्स ऑन मी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अभी से ही कर सकती हूँ ना, राइट, साथ साथ, बिकॉज इट देयर इज नो हार्म। इट इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अपनी फीस के लिए आप अपना सेमेस्टर सेक्रीफाइस कर दें। आप देखें अगर आप टाइम मैनेज होता है तो आप कर लें, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग भी रहेंगी और मटेरियल भी रहेगा। लेकिन अगर आपने करना है तो एक करें, दोनों ना करें, और अपनी कन्वीनियंस पहले देखें भाई सारे, हमारी कन्वीनियंस ना देखें। मेरे लिए तो फ़ायदा है, मुझे फीस मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए अपनी कन्वीनियंस भी देखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी जिशान, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने अपनी ऐसे की एवेल्युएशन कहाँ से करवाई थी? यार मैंने करवाई थी, एक मैडम है मैडम फिज़ा, उनसे मैंने करवाई थी, और उनका एक्सपीरियंस मेरा बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आई हम्म। स्टार्टेड विद हर इन 2017 मई, और मैं फेब 2018 तक उनके पास जाता रहा हूँ, एग्जाम से इवन 2 डेज पहले तक भी। तो उन्होंने बड़ा 1 to 1 टाइम देती थी और बड़ा एक अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया। और उसके बाद मैंने सर एक ही दफ़ा ऐसे पढ़ा था 2018 तक, उसके बाद मैंने जितनी भी अपीयरेंस दी है उसमें मैंने ऐसे नहीं दोबारा पढ़ा।
तो शी इज़ द बेस्ट वन। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि करेंटली वो ऑफर कर रही हैं या नहीं। अगर वो कर रही होंगी तो मैं उनका जो पोस्टर है वो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, एक और दो चीजें और। एक सर, करंटली मैं तो मैंने मतलब काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम नहीं दी। ये मतलब अभी मैं आजकल पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी पढ़ रहा हूँ, तो क्या इज दिस इनफ फॉर पाक अफेयर? जितना मैंने उसको देखा है, मतलब आपकी इस बारे में क्या सजेशन है? वैसे उनने कवर तो सारी चीजों को किया है। हम किस चीज़ पे बता रहा? मैं सर बुक की बात कर रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? और सेकंडली मतलब मैं आजकल पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी पढ़ रहा हूँ, जो मलिया नूदी की 2024 वाली आई है। तो उसमें तो वैसे कवर तो ये सारे एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपकी इस बारे में क्या सजेशन है? यार यू कैन गो विद एनी बुक, ठीक है। बुक की कोई ऐसी मेरी जेनेरिक रिकमेंडेशन नहीं है। यू कैन कवर, यू कैन रीड एनीथिंग वट एवर यू लाइक। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको दूंगा उसके साथ वो नहीं है कि वो फाइनल है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स वो करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन बुक्स आप रीड करें। एनीथिंग, एनी वन यू लाइक टू रीड, यू कैन गो विद इट। तो मेरी इसमें कोई जेनेरिक रिकमेंडेशन, जब सेशन स्टार्ट होगा कुछ मैं बुक शेयर कर दूंगा कि भाई हाँ ये बुक्स आप प्रायोरिटाइज कर लें, लेकिन वट एवर यू लाइक यू गो विद इट। कोई मैं रिस्ट्रिक्शन इसमें ऐड नहीं करता। ठीक सर, लास्टली अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सजेशन शेयर दूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम मैंने मॉक्स वगैरह भी दिए लास्ट टाइम। तो मैं कोई अपनी एक सजेशन एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप अलाउ करें। जी जी, आप करें। सर, ये जो न्यूज़पेपर की जो अभी बात चल रही थी ना, तो मैंने एक थोड़ी सी एक नई कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। तो वैसे तो मैं पढ़ता बाई हैंड ही हूँ उसको, न्यूज़पेपर को, लेकिन मैं जो भी मुझे पता है कि वीकली मतलब कौन कौन से मैंने पढ़ने, तो वो अब मैं क्या कर देता हूँ, जो भी आर्टिकल होता है उसको पढ़ के चैट जीपीटी से उसको कॉपी करते स्ट्रक्चरली उसका ब्रेकडाउन, तो उसको वो कर लेता हूँ मैं सेव अपनी एक वर्ड फाइल में, डेट ऑफ न्यूज़पेपर हर सेक्शन के हिसाब से, क्लाइमेट, इकोनॉमी। मतलब ये जो न्यू जो बच्चे हैं जिनको अगर इस तरह की डिफिकल्टी हो रही है, तो वो एक आपका बहुत सारा डाटा चंक भी बनता रहता है, आपको याद आता है हाँ मैंने वो आर्टिकल भी पढ़ा था। न्यूज़पेपर को इतनी संभालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो उस फैक्ट बुक को आप अलग अलग भी बना सकते हैं। अच्छा, ये आपका आप एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट टू द न्यू एस्पायरेंट्स, क्योंकि इससे आपका एक एनालिसिस डेवलप नहीं होता। खुद ही पॉइंट्स गैदर करें और खुद ही उसको आप एक फैक्ट बुक हार्ड के अंदर लिखें, तो फिर ज़्यादा फायदा है। हाँ, अगर आप मेच्योर हो गए हैं, आपके 1 2 साल 3 साल आपके लग गए हैं, तो फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके एक डेवलपमेंट हो गई होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। लेकिन आप अगर बिल्कुल स्टार्ट में है तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। पर्सनली मेरा, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस चैट जीपीटी पे मैं करता हूँ चीज़ें देखता हूँ, लेकिन उससे मुझे मुझे नहीं मज़ा आता रीड करके क्या है कि उसने क्या लिख के दे दिया। तो आप जो एस्पायरेंट्स हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको वोकैब के वर्ड्स मिलते हैं, उनको एक्सप्रेशन मिलता है, वो चीज़ें आप उसको यूज़ करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ रीडिंग, इट्स अबाउट गेटिंग इन टू इट। कि जैसे अभी भी मुझे एक याद है कि द इश्यूज वर बबलिंग अप बीनीथ द सरफेस आर नाउ बॉइलिंग अप। कितनी अच्छी लाइन है, एक सिंपल सी लाइन है। आई एम रिपीटिंग इट कि द इश्यूज, वट एवर द इश्यूज, दे आर दे वर बबलिंग अप बीनीथ द सरफेस आर नाउ बॉइलिंग अप। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पर डालेंगे वो तो अपने वर्ड्स में देगा, अपना माइंड यूज करेगा। तो आप अपना माइंड यूज करें, व्हाई यू आर यूजिंग समवन, रिलाइंग ऑन समवन समवेयर एल्स। तो ये मेरी सजेशन सारे एस्पायरेंट्स के लिए हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं या कुछ एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, कि खुद से एफर्ट करें। क्रैमिंग है इसके अंदर, पेपर के अंदर, तो क्रैमिंग तब भी पॉसिबल है जब खुद एफर्ट करेंगे। बनी बनाई चीज से आपको फायदा उतना नहीं होगा, पर्सनल एफर्ट इसमें करनी पड़ती है। ठीक है जी। जी सुमन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम मैरिड और मेरा बेबी है 2 मंथ का। तो जस्ट मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो डाटा शेयर करेंगे वो इनफ होगा फॉर प्रिपरेशन, या मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हार्डवर्क करना पड़ेगा? बस मुझे ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था और मुझे इसका आंसर चाहिए। इंशाल्लाह हमारा डाटा सफिशिएंट होगा इसके लिए। और कोई, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा, कोई स्टूडेंट है हमारे पास जो कि पहले पढ़ रहा हो और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि क्या आपको फ़ायदा हुआ है हमारे सेशन से, ताकि आपके सुनने वालों के लिए थोड़ा सा फिजिबल हो जाए। इन माई ओन एक्सपीरियंस आई थिंक ये चीज़ें जो मैं आपको शेयर करता रहूँगा ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ के शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं है कि एक पुरानी यस रेडीमेड सर। चीज़ें आप कर दी जाएंगी, एक अपडेटेड और टू द पॉइंट चीज़ें होंगी।
और एक ऑलरेडी वो फिल्टर आउट हो गई होंगी, तो आप अगर वही कर लेना मोस्टली स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाता है बाकी चीज़ों को मैनेज करना, जैसे मैंने शुरू में कहा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बस मेरी यही क्वेरी थी। जी, इसके बाद हैं जी हमारे पास आईफोन 13 मिनी। यार अपना नाम ही लिख लिया करें। चलें, बताएं क्वेश्चन। टेक्स्ट वालों के भी मैं अभी आंसर करता हूँ, चैट वाले। अभी ज़रा हैंड रेज वाले सुन लो एक दफ़ा। iPhone 13 mini, you cannot unmute. Okay, let's continue with the next one. Asma, you have any question? Ji, Asma, do you have any question? It seems we are also unable to unmute. Ji, Sara Khan. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। सर मैंने कहा था कि अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग आपका इस सेशन में एडमिट ना हो और नेक्स्ट सेशन में एडमिट हो तो क्या हमें प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी? नहीं, प्रीवियस वालियों का फिर फायदा नहीं होगा, फिर करंट वाली मिल जाएंगी आपको। प्रीवियस वाली लेके क्या करनी है? लाइक सर जैसे आपने कहा कि हम लोग इस सेशन को मतलब ईयरली मतलब टिल CSS नेक्स्ट भी ऐसे 2026 ही तक होंगे। नेक्स्ट भी ऐसे ही होंगे कि जो मतलब वंस यू एनरोल विद मी फॉर एनी CSS 2026 सेशन, लाइक अभी मैं अभी कर रहा हूँ स्टार्ट, इसके बाद आई विल टेक इट आफ्टर 2 months और मे बी 2.5 month लेटर। तो उसके हम्म, बाद अगर मैं उसके बाद जो नेक्स्ट करूँगा उसकी चीज़ें भी मैं दोनों पिछले बैचेस के साथ देता रहूँगा। इट्स नॉट लाइक इसी वालों को देंगे, नेक्स्ट वालों को भी देंगे। सही मतलब सर ओवरऑल मतलब हर उस सेशन में सेम चीजें होंगी, राइट? जी सही, थैंक यू हाँ। सर। अच्छा, इसके बाद इस्मा, आपका क्या क्वेश्चन है? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आई जस्ट गॉट रिसेंटली ग्रेजुएटेड और मुझे थोड़ा सा ना CSS का जो मतलब रिटन पैटर्न है, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय ओन नोट्स। मतलब हम लोग तो जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं सर, तो एक रात पहले ही 4-5 स्लाइड्स पढ़ के हम एग्जाम्स दे दिया करते थे। यही आजकल की यूनिवर्सिटीज का जो है वो एक डिलेमा है। लेकिन सर मुझे प्रॉब्लम इस चीज में है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई ओन नोट्स। मैं अगर PA के नोट्स बना रही हूँ या फिर मैं किसी और इस्लामियात के नोट्स वगैरह बना रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर मेरा मटेरियल इसके अंदर कवर हो भी रहा है कि नहीं। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट या फिर मैं वैसे ही नोट्स को प्रिंट करवा के उसको क्रैम करना शुरू कर दूं। मुझे थोड़ा सा इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे लर्न करूं और उसको फिर मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। अच्छा, इसमें अच्छा आपका क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये चीज़ें पर्सनल होती हैं कि आप किस तरह नोट्स बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने अपने कुछ नोट्स शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, हैंड रिटन जो मैंने बनाए होते हैं ना। अगर मैं आपको इसमें शेयर करूँ गूगल क्लासरूम पे, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मतलब सॉरी कुछ नोट्स होते हैं मेरे अपने जो मैंने कभी बनाए थे, वो मैं शेयर कर देता हूँ कि यार एक ये एक तरीका है, एक एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप इस तरह बना लें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गो टू माय क्लास वर्क हेयर एंड आई हैव शेयर्ड सम डेटा ऑन अदर लाइक टॉपिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, क्लास टेस्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, MCQ स्लाइड्स ऑन एडिशनल टॉपिक्स। मे बी इसमें हो, नहीं इसमें नहीं है। तो मैं डिफरेंट लाइक सब्जेक्ट्स के ऊपर शेयर करता हूँ डाटा, तो आप उससे देख लीजिएगा कि भाई किस तरह बनाने हैं। ठीक है। ये जैसे ठीक है। IR के ऊपर मैंने शेयर किए हुए हैं, इसी तरह मैंने पंजाबी के ऊपर किए हुए हैं, जनरल और स्टडीज़ के सर ऊपर हैंड। IR रिलेटेड नोट्स भी बता दें, कोई स्पेसिफिक बुक जिसका मटेरियल अच्छा हो IR की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा था खुद ही, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है।
कोई ऐसी मैं ना आईआर पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह मैंने जैसे आपको शेयर किया कि ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं शेयर कर दूंगा कि भाई इस तरह आप नोट्स बना लें। बाकी फिर आपके ऊपर है कि किसको किस तरह करेंगे। और शुरू में हर स्टूडेंट को ये इशू फेस आता है, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक, इट्स अ जनरल थिंग। आपको आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेट टू नो थिंग्स और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे, बट ट्राई टू इम्प्रूव इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो ठीक है मच सर। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? एज समथिंग आई डोंट नो व्हाट्स योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है अल जजीरा की और जितने भी इफ्री या जो भी हमारे पास थिंक टैंक्स हैं। सर हम उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें? तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि हम अगर सॉफ्ट फॉर्म में भी नोट्स बना रहे हैं तो हम इतने ज़्यादा सेक्शंस या टॉपिक्स हो जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या स्किप करना है और क्या नहीं। ये बड़ा तो इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन है, थोड़ा क्योंकि गाइड जैसे कर मैंने दें। शुरू में बताया ना आपको कि यू नीड टू नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर टॉपिक कवर कर लिया है देन यू नीड टू से टू योर सेल्फ कि भाई ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, अब चीज़ें मिल जाएंगी, और जैसे करंट अफेयर्स अब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती रहती हैं, कहते हैं सर आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं, वो देखें वहाँ पे इतना कुछ है। तो मैं कहता हूँ यार पढ़ लो, आप उधर से भी जाके पढ़ लो, मेरा क्या जाता है, आपने पढ़ना है आप पढ़ लें। लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? क्या सारा कुछ लिख सकते हैं? इतना कुछ आपने पढ़ लिया एक टॉपिक के ऊपर, आपने क्या एक टॉपिक उधर कवर करना है या सारे साल सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है? यू हैव अदर 11 सब्जेक्ट्स, आपने उनके ऊपर भी फॉलो फॉलो करना है, फोकस करना है। तो यही चीज आपने अपने आप को समझानी है कि ये चीज मैंने जो पढ़ ली है ये काफी है, और यही काफी है, आगे मैं बाकी सब्जेक्ट से ऊपर देखूं, और आगे जो पेपर में जाएगा अल्लाह की मर्जी, उसमें अगर मेरे किस्मत में हुआ जो मैंने चीजें पढ़ी होंगी आ जाएंगी, नहीं हुआ तो नहीं आएंगी, डेट्स इनफ। आप अगर एक ही के पीछे लगे रहेंगे तो बाकी चीजें हम स्किप कर देंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। जी, अह, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको चैट वाले जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर दूं, फिर आई विल कम बैक टू द अदर क्वेश्चन। थैंक यू गुल अहमद, आपने इनरोल किया। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन से बेस्ट हैं? यार मैं डोंट फॉलो करता हूँ, यू नीड टू फॉलो दैट और एनी अदर इफ यू हैव इट। जी, गुल अहमद, पोस्ट पार्टीशन से ही हम पाकिस्तान अफेयर शुरू करेंगे। शुड वी मेक हैंड रिटन नोट्स फॉर करंट अफेयर्स? जी नीलम, आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं करंट अफेयर के, जैसे मैंने आपको कहा ना डिफरेंट फैक्ट बुक बनाएं, तो उसमें ही आप नोट्स बनाते जाएं। अच्छा जी, इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करने के लिए जस्ट फॉलो अ ग्रामर बुक, एनी बुक, और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई विल नॉट गिव एनी रिकमेंडेशन फॉर ऑप्शनल्स। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का बता दें प्लीज़, क्या चांसेस हैं? चांसेस तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वल ही हैं, बलूचिस्तान सारे स्टूडेंट्स दे आर वेरी डियर फॉर अस, और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोटा भी आपका एक अच्छा है, तो यू कैन लाइक यू जस्ट हैव टू पास एंड देन यू गेट एजुकेशन, गुड एजुकेशन। और जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिन से रब्ता कर लें, वी गिव देम सम डिस्काउंट एज वेल। स्पेसिफिक टाइम आई कैन नॉट शेयर कि कितना आप स्पेसिफिक टाइम दें, ऑप्शनल कंपलसरी, इट इज़ योर ओन फील्ड, इसके ऊपर आप फाइंड करें। मैंने टोटल कितनी आउटलाइन लिखी? आई रोट अ लॉट, डेली एक आउटलाइन लिखता था। अच्छा, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करेंगे? इंग्लिश के ऊपर सेपरेट लेक्चर होंगे मेरे, आई विल शेयर विद यू, जो मेरे इनरोल स्टूडेंट्स हैं। जी, समवन सेज के करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर लेक्चर से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप बुक पढ़ने की, करंट अफेयर पे तो बुक होती नहीं है ना, उस पर क्यों पढ़नी है आपने? डोंट नीड टू रीड इट, जस्ट रीड द मैगजीन इफ यू वांट टू रीड।
अच्छा, एक समवन सेज कि मैं एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहता हूँ। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपके जब आप अपीयर होने जा रहे हैं सीएसएस में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अगर आपके तब तक 2 इयर्स ऑफ आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है परमानेंट, तो आप एज रिलैक्सेशन कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं क्लेम। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद पीएस, इट्स फाइन। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगी जहाँ से आपको लिंक शेयर हुआ था। ओके, नाउ आई विल गो डाउन। अच्छा, someone says कि when my next session is going to start, it will be around 2 months later, like जो ईद उल अजहा है उसके बाद मैं इसको करूँगा। तो मैं अभी पहले एक सेशन कंप्लीट करता हूँ, जब वो कंप्लीट होने वाला होता है फिर मैं सोचता हूँ यार नेक्स्ट सेशन कब करना है। तो पहले मेरे कोई प्री प्लान नहीं होते। आई ऑल्सो टेक रेस्ट साइमल्टेनियसली ना भाई, थोड़ा ब्रेक लूंगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। मैं इतना ओवरबर्डन अपने आप को नहीं करना चाहता। अच्छा जी, आई डोंट मिस माई होम डिस्ट्रिक्ट बिकॉज आई गो देयर ओकेजनली, लीव पे चला जाता हूँ मैं। हाउ टू मैनेज स्टडीज विद 5 to 9 जॉब। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज नाउ इन कस्टम्स, और उसकी ही वाज वर्किंग इन पैकेजेस, ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पैकेजेस में जॉब करता था 9 to 5 PM तक, और उसके बाद वो कंसिस्टेंटली रीड करता था। डेली के 4 आवर्स उसने फिक्स किए होते थे। तो इट टुक हिम अराउंड 2 years टू प्रिपेयर, बट ही एक्चुअली शेड्यूल्ड इट वेल कि भाई मैंने ये चीज़ें तैयार करनी है और किस किस मंथ में क्या क्या चीज़ें मैंने तैयार करनी है, और उसने इजीली इसको कर लिया। सो अगेन, if you want to do something you can do it, but again you have to plan it. अच्छा जी, अब इस पे चैट पे आ जाते हैं। दूसरी, पास्ट पेपर रिपीट होते रहते हैं, हम उसको भी करेंगे। अच्छा, समवन सेज कि क्या सीएसएस की प्रिपरेशन में एकेडमी जाना चाहिए या नहीं। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास इतने ऑनलाइन मोड अवेलेबल हैं लर्निंग के, तो एकेडमी में जाके कुछ सब्जेक्ट्स के आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली। और वहाँ पे जाके आपको रूटीन, मतलब दिन के आप 4 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और टाइम वेस्ट होता है आने जाने में, लॉजिस्टिक्स इशू होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही मेन सिटीज़ में तो नहीं होते ना। आपको यू हैव टू go travel and then you have to adjust in another city without your family, तो आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, सोशल बर्डन आ जाता है। तो अब चूंकि सारा कुछ ऑनलाइन ही है, जैसे अब मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, मोस्टली अदर टीचर्स ऑनलाइन ऑफर करते हैं, तो जस्ट फाइंड समवन whom you think is good or she is good, तो join that session for particular subject and cover it. So academies are no more important. Yes, mock exam दे सकते हैं, but not anyone like other thing. एमबीटी आपको हर साल दोबारा देना पड़ता है। ऑप्शनल्स का अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं अपने रेगुलर सेशंस में साथ साथ चलाऊंगा ये चीज़ें। एज अ मॉर्निंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, भाई आप बेसिकली अगर स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी की, तो आप डेली का कोई एक सब्जेक्ट फॉलो करें। लाइक अगर आपका बहुत टाइम है सीएसएस देने में, तो आप एक ऑप्शनल से स्टार्ट कर लें और इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर लें। दिन में 1 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर को दे दें, 2 घंटे ऑप्शनल को दे दें, और एक स्टडी प्लान बना लें कि भाई ये ऑप्शनल मैंने 2 महीने में कवर करना है या 1 महीने में कवर करना है, और उसके मुताबिक उसको कवर कर लें और बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, समवन सेज कि बहुत सारे मेंटोर्स डॉन रीडिंग डिस्करेज कर रहे हैं, तो मे बी दे हैव देयर ओन रीजंस, बट मैं बड़ा लॉयल हूँ डॉन से, तो मैं डॉन पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ अगर आपने पढ़ना है तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आई विल शेयर दी स्लाइड्स एज वेल। रहाफ, आई डोंट हैव एनी इंसाइट ऑन एफएसपी, लेकिन एफएसपी वाले जो बैचमेट है वो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो जो स्टेटस लगाते हैं, दे आर विजिटिंग तुर्की, दे आर विजिटिंग, समवन इज विजिटिंग इजिप्ट, समवन इज विजिटिंग इटली, फिर वो ईस्ट एशिया चले जाते हैं, कभी बाली, कभी थाईलैंड, मलेशिया, जापान, देन जिनेवा, वट एवर दे आर जस्ट विजिटिंग एंड विजिटिंग। तो एक अच्छा लगता है, चाम होता है। लेकिन मेरा चूंकि फैमिली, I don't want to leave Pakistan, so I preferred PS. Okay जी, I will come back to the ones who have raised hands. उनके questions दोबारा पूछ लेते हैं। जी मीना, क्या question है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, मेरा ना पहला क्वेश्चन होगा पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड। सर मैंने ना प्री पार्टीशन पढ़ लिया ट्रैक टू पाकिस्तान वाली बुक से, उसको मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। सर अभी मुझे पोस्ट पार्टीशन मैंने पढ़नी है, तो मैं स्टक हो गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसको मैं शुरू कहाँ से करूँ और फिर खत्म का क्या करूँ, या मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आउटलाइन है उनको पढ़ना शुरू करूँ। तो आप मुझे प्लीज काइंडली इस पे बता दें कि मैं क्या करूँ इसका। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें, मेरे दिन जाया हो रहे हैं। रीड करें आप, हामिद खान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बुक है, फिर मलिहा लोधी की डिफरेंट बुक्स हैं, फिर पाकिस्तान हार्ड कंट्री है, यानी तो लिवन की है, ये बुक पढ़ लें, इससे पोस्ट पार्टीशन आपका कवर होगा। जी और सर जो सिलेबस है हमारा, उसको उसी को ही हम पोस्ट पार्टीशन कह रहे हैं ना, जो सिलेबस की आउटलाइन है। वो हम्म, पहले वाले मुस्लिम रूल छोड़ के उसके बाद जो सिलेबस है। वो पता नहीं वो क्या है, पोस्ट पार्टीशन में कह रहे हो 1947 से 2008 तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो है। ओके सर, थैंक यू। और सर एक सवाल मेरा हो रहा है कि सर जब एक सब्जेक्ट पढ़ने लग जा रही हूँ ना मैं, तो सर मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो पहले पढ़ लिया ना, मुझे सारा भूल गया है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो मैं फिर उसको जब दोबारा पढ़ने बैठूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा मुझे इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मेरा पाकिस्तान अफेयर मैंने बहुत, मुझे टाइम हो गया, लाइक मैंने अप्रैल के शुरू में स्टार्ट किया था प्री पार्ट पढ़ना। तो वो बीच में ईद की थोड़ी सी छुट्टियां हो गई, तो वो बीच में मेरा थोड़ा टाइम रहा, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन सर एक पे टाइम बहुत लग रहा है, फिर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पढ़ लिया है मुझे वो नहीं, मैं उसके साथ फिर रिलेट कर पा रही हूँ, तो मेरी एफर्ट बहुत ज्यादा इसी टाइम पे जाई जा रही है। ये तो बात ठीक है आपकी। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप थोड़ा सा लिमिट कर लें अपने आप को रीडिंग करने में, यहाँ पे स्टेज कर लें। तो सर वो और बस ना एक यही मसला आ रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना नॉलेज की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। मैं पढ़ती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैं 4-5 बुक से डाटा निकालूं, फिर उसमें मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा टाइम इतना ज्यादा लग जाता है एक ही टॉपिक पे। बस यही लिमिट ही मुझसे लग रही है कि मैं कहाँ रुक जाऊं, कि अभी ये काफी हो गया। यही चीज़ तो मैंने शुरू में डिस्कस किया है सारे स्टूडेंट्स के साथ कि भाई यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्यों प्रिपेयर नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि यू नीड टू सेट लिमिट्स, कि भाई ये मेरी लिमिट है, बस ठीक है मैंने इसको कर लिया 2 मंथ्स में, तो दैट इज डन। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रश इनटू द थिंग्स अगेन। हाँ, आपने जो करना है पहले उसको थोड़ा वर्कआउट करें ना, कि कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें, उसको देखें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके ऊपर थोड़ा सी वर्किंग करें, एनालिसिस करें, और फिर स्टार्ट करें। और फिर जब उसको फिनिश कर लें तो सही कि दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एनफ। और आप चीज़ें भूल जाते हैं, हम भी चीज़ें भूल जाते हैं, बिल्कुल याद करके हमारा ब्रेन जो है वो एक लिमिटेड तरीके से फंक्शन करता है। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती हैं, बट इट डजेंट मीन कि यू हैव टू स्टार्ट जीरो अगेन। यू नीड टू मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लिटिल बिट लॉन्ग नोट्स, वट यू से, और उनको रिवाइज कर लें और आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसके अलावा देयर इज नो अदर स्ट्रेटेजी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी, रमीज़ा, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my question is a little complicated. Sir, I'm currently studying MBBS. I'm in my fourth year, and alongside, I have also applied for my BS English exams. First, I was like thinking to appear in the 2026 exams, but I wanted to ask, like, how can I know if I'm truly ready to appear for the CSS exams? Sometimes I get confused about whether I'm on the right track. Honestly, it gets tough, especially when people around me say I won't be able to manage or that I can't do it. It does get to me. That's why I genuinely wanted to ask you, how does someone know if they are truly ready for CSS? And in your opinion, when is the right time to appear? I really value your guidance. Right time to appear can be like in 21st age, like if you are 21, you can just appear, or if you are 30, you can still appear, because we have these two limits. तो क्वेश्चन इसका सिंपल आंसर ये है कि नो वन कैन क्लेम कि ही और शी इज फुली रेडी फॉर CSS। मैं अगर 2018 में मैं अपीयर हुआ, आई वॉज नॉट लाइक एट दैट वन मोमेंट आई थॉट कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अपीयर नहीं होने जा रहा। सेम हैपन इन 2020 के यार मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मुझे तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने मॉक सेशन नहीं दिए, तो मैं रेडी नहीं हूँ। तो देन आई स्टिल अपीयर्ड। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं आपको जो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या कुछ चीज़ें आपको रिस्क पे छोड़नी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझती हैं कि आप एक ऐसे लिख सकती हैं किसी भी टॉपिक के, एंड दैट वाज द थिंग जो कि मैं समझता था कि मैं कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरी उस पर प्रैक्टिस थी कि भाई कोई भी टॉपिक आ जाए। फॉर्चुनेटली मेरे पास टॉपिक्स ही बहुत अच्छे हैं जो इजी थे 2018 और 2020 दोनों में, आप देखें। लेकिन इजी टॉपिक पे लिखना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबके पास मटेरियल होता है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इफ आई गिव यू एनी टॉपिक, एनी 10 टॉपिक्स, इफ यू कैन राइट आउटलाइन ऑन एनी वन ऑफ इट, तो कंफर्टेबली अगर आप उस पर लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो आप समझे कि आप उस पर रेडी हैं। अच्छा, आप सिमिलरली इज द सेम केस इज विद प्रेसी पेपर। आप अगर किसी भी चीज की प्रेसी कर सकती हैं और आपका कोई इवेलुएट करने वाला उसको कहे कि डेट इज फाइन, आपने ठीक किया है, तो आपके अगर ये दोनों पेपर हो जाते हैं और इसमें दोनों में आप कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं कि यार अब तो मैं लिख सकता हूँ और मैं चीज़ें मुझे अच्छी इन दोनों में मैं कवर कर सकता हूँ, तो आप अपीयर हो सकते हैं सीएसएस के पेपर्स में। जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसकी आप स्मार्ट प्रिपरेशन करें ना, मतलब एक सिस्टमेटिक तैयारी कर लें। लाइक आपने पाकिस्तान अफेयर करना है, एक सोर्स से कर लें कि मैंने पाकिस्तान अफेयर्स कर लिया, मुझे याद हो गया, डेट इज इनफ, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहती या जाना चाहता। सिमिलर विद अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आप अगेन इसमें दोनों चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे ग्रामर और इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं और बाकी चीज़ें हमने लिमिट कर ली हैं कि यार ये मेरा सिलेबस हो गया है, अब मैं इस सिलेबस जो मैंने टॉपिक किए हैं इससे मैं पास पेपर कर सकता हूँ, तो डेट इज फाइन, यू आर कंफर्टेबल टू अपेयर इन द एग्जाम। Otherwise, there will be no point in your living history. I am not saying in your age till 30. In your living history, like अभी अगर कोई मुझसे कहे ना आपकी तो एज भी है और आप थर्ड अटेम्प्ट में जाके दे दें, तो मैं कहूँगा नहीं यार, मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। तो ये चीज़ हर किसी के साथ रहती है और हम एक ऐसी चीज़ को रेडी कर रहे हैं जो कि लिमिटलेस है। तो यू हैव टू मेक सम बाउंड्रीज, और आपने दो सब्जेक्ट्स जो जैसे मैंने मेंशन किया उनको रेडी करना पड़ेगा। अगर आपके ये हो गए हैं तो आप सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, माय असेसमेंट इज दैट। और बाकी अगेन आप एवेल्युएशन करवाएं, बाकी मेंटोर्स जो भी एवेल्युएट करेंगे वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि यार आपके आप रेडी हैं या नहीं है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी अशरफ, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन है आंसर राइटिंग के ऊपर। इस साल में मैंने पेपर्स दिए हैं, तो सर मेरे साथ जो बंदा था उनसे मैं परेशान हो रहा था कि मेरी भी तैयारी जबरदस्त थी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आल्दो कि कुछ रिवीजन का इशू था। लेकिन ये है कि 1 घंटे नहीं हुआ था वो साथ में आंसर शीट ले रहा था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि आपने कितने आंसर शीट्स लिखे थे, लिए थे सर एडिशनल, और कितना लाजमी होता है? इस हवाले से काइंडली सर। यार मेरा एक दोस्त है, उसने बिल्कुल नहीं लिखे आंसर, और कहता है मैंने 4-4 5 पेज पे लिखे और उसके भी अच्छे नंबर थे, और मैंने 4-4 5 एक्स्ट्रा शीट्स ली, मेरे भी नंबर ठीक थे। तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है। दोनों ही चल जाती हैं चीजें। अच्छा सर, एटलीस्ट 1-2 एडिशनल शीट्स मतलब ये है कि लगाने चाहिए कि। यार ये तो वही हो गया ना कि सर मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाना खाता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। सो इसका मैं आंसर क्या करूँ? ये ठीक मैंने है सर। आपको बता, हर स्टूडेंट का मैटर करता है ना, किसी की स्पीड तेज है वो लगा लेगा, जिसकी स्पीड तेज नहीं है वो भी नहीं लगाएगा। ये किसी की राइटिंग छोटी है, वो छोटा छोटा लिखता है तो वो ज्यादा नहीं लगाएगा शीट्स। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इस पे कोई एक यूनिवर्सल वो नहीं है तरीकेकार के भाई आपने शीट लगाई है तो आपके अच्छे नंबर हैं, ये नहीं इस तरह होता। सर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो उस बंदे का मैंने रोल नंबर लेके आया हूँ कि पता नहीं अगले साल वो रिजल्ट देख सकूं। इसका मतलब है बहुत वेले हैं आप। नहीं सर, मतलब ये है कि साथ वो दोस्त थे सर। वो दरअसल ये है कि स्पीड मैंने भी, चले खैर है सर, थैंक यू सर। इस इन चीज़ों पे अगर आप करने लग जाएंगे ना कंसंट्रेट, तो कोई कहेगा मेरी तो राइटिंग बड़ी अच्छी है, आप कहेंगे मेरी राइटिंग नहीं अच्छी। कोई कहेगा मैं मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप कहेंगे तो मैं मैप ही नहीं बना सकता। कोई कहेगा मैं कोटेशन बहुत लगा के आया हूँ, कहेंगे अच्छा यार मैंने तो कोटेशन ही नहीं लगाई। तो अगर आप इसमें कंपैरिजन में पढ़ जाएंगे तो फिर भी आपका सीएसएस नहीं होगा, कंपैरिजन में नहीं पढ़ना। अच्छा एक ओके। चीज बता दूं कि भाई जब मैं सबके साथ शेयर करता हूँ मोस्टली, सबको पता भी होगा मेरे स्टूडेंट्स को, कि एक मेरा सीनियर था, लाइक मैंने इतनी गाइडेंस नहीं ली, मोस्टली खुद ही तैयारी की है, एकेडमी भी नहीं गया। तो एक मेरा सीनियर थे यूईटी के, ही वाज 3 ईयर सीनियर और सीएसएस की तैयारी कर रहे थे। वंस व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आई वेंट टू हिम और मैंने पूछा यार, तब सीएसएस 2016 का रिजल्ट आया था एंड ओनली 202 स्टूडेंट्स पास दैट एग्जाम रिटन में। मैंने कहा यार 202 बच्चे पास हुए हैं, 20,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, ये क्या बात हुई, ये तो नहीं मैं कर रहा। मतलब मैंने उसको ऐसे ही कहा जाके।
मेरी तरह उनसे फ्रैंकनेस थी। कहता यार देखो, अगर 200 भी हुए होते या दो भी हुए होते, और अगर मैंने एग्जाम दिया होता, तो आई वुड बी श्योर कि आई वुड बी वन ऑफ देम। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपका कि अगर एक भी स्टूडेंट पास है ना, सिर्फ एक स्टूडेंट पास है, तो वो हूँ मैं। तो ये मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि यार अगर कोई भी पास, मतलब सिर्फ 100 पास हैं, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन अमंग देम। अगर 1000 पास हैं, तो आई विल स्टिल बी इन इन द लिस्ट, और अगर बहुत ही लिमिटेड पास हैं तब भी मैं लिस्ट में हूँ। तो यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, अदरवाइज ये बड़ा एक लीथल एक गेम है, जिसमें 10-10 साल से लोग जो है ना लगे होते हैं, बीए कर लेते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ने खुद सोचने के क्या आप उन तरह बनना चाहते हैं, या आप अपना एक करके अटेम्प्ट दे के कोई अपना दूसरा काम करना शुरू करना चाहते हैं, या किसी तरफ लगना चाहते हैं। बिकॉज सीएसएस इज नॉट द एंड, इट इज सिंपली अ वन मीन टू गेट सम कंफर्टेबल लाइफ, जो कि अब नहीं रही। ठीक है, अलग चीज है ये। जी फरहान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था कि मैं जो बुक जो है वो प्री पार्टीशन के लिए स्टडी कर रहा हूँ वो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। और वहाँ से मैंने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह और का टॉपिक्स वगैरह क्लियर किए थे। लेकिन सर जी वो वहाँ पे समझ नहीं आ रही कि वो नोट्स वगैरह उनके कैसे वो बनाने हैं, और वही ना कि वो तो उन्होंने वो जो हेडिंग्स वगैरह नहीं दी हुई, वो वैसे लिखा हुआ है तो वो समझ नहीं आती पॉइंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। यार ये चीज़ें समझा देंगे लेक्चर्स में ना, मैंने स्लाइड्स में नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, लिस्ट एंड टॉपिक्स जी वाइज नोट्स, तो वो फिर आपको आइडिया आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा इन चीज़ों का। बेहतर सर, बेहतर सर। और सर जी एक क्वेश्चन और है। जी। ये सर जी तब ये तब अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। वही आपकी बात है कि हौसला तो होना चाहिए बंदे के अंदर कि अगर जो है वो एक भी स्टूडेंट पास हो तो वो मैं ही हूँ। ये तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन सर जी वो कुछ लोगों की इंग्लिश क्वाइट प्रोफिशिएंट होते हैं, काफी ज्यादा इंग्लिश ऐसे मार रहे होते हैं लड़कियां लड़के। वो परेशान हो जाता है बंदा, यार ये क्या करने जा रहे हैं, और इनकी तो इंग्लिश ही बड़ी अच्छी है और ये तो ऐसे पता नहीं। वो थोड़ा सा तो सर जी किस लेवल तक इंग्लिश चाहिए इसमें, तो किस लेवल तक, यानी कि वो एक वो कैब वगैरह जो हमें समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं कौन से वर्डिंग में वो बात कर रहे होते हैं या पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं या इस तरह सर जी। क्योंकि मेरा जो है वो बैकग्राउंड मेडिकल है और फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस फाइनल ईयर है मेरा। और लेकिन फिर कौन भी से मुझे आपका जो है वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कौन सी है एरिस आपकी? एरिस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सर जी, ये बिश्कीक है, किर्गिस्तान रियासत है, रशिया की। आपको बेहतर पता होगा मुझसे। अच्छा, आप और किधर ये रह रहे हैं वहाँ पे? आप किर्गिस्तान रह रहे हैं? जी राइट। जी सर जी, और फाइनल ईयर है, लेकिन ना मैं फिर भी इस पे कंसंट्रेट फुली कर देना है, क्योंकि इधर जो है वो रशियन डॉक्टर्स होते हैं, हल्की सी हमारी होती है रोटेशन वगैरह हॉस्पिटल, ये वो तो वो इतना नहीं होता, उसमें पढ़ना पढ़ना नहीं इतना पड़ता फाइनल ईयर में। तो वो अच्छा, थोड़ा सा जो भी डर लगता है, है। लेकिन अगेन इसमें आपको यही बता दूं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द कंपैरिजन विद एनीवन। एंड एट योर लेवल, जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी भी इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और मेरा भी कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि एचएसएन से, या मैंने कोई ऐसी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हो। आई सिंपली ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूआईटी, एंड आई वाज नॉट लाइक फ्लुएंट इनफ इन इंग्लिश स्पीकिंग। और अभी भी मेरी बस गुजारा चल जाता है। तो इट इट इज़ द सेम थिंग, आपने खुद अपने ऊपर वर्किंग करनी होती है। और रिटर्न में उन्होंने इंग्लिश बोलनी ही नहीं आपसे देखनी, वो तो इंटरव्यू में होगा, और इंटरव्यू में बड़ा टाइम होता है, उस पर प्रिपरेशन की जा सकती है। तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस dilemma ऑफ comparisons एंड देन स्टार्ट वर्किंग। थैंक यू सर। जी एक छोटा सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन प्लीज। जी, क्या क्वेश्चन है छोटा सा? सर जी ये जो है ये मैं ना स्टडी वगैरह करते हैं तो ये पीछे से भूलता जा रहा है, और आगे जो है वो स्टडी हम करते जा रहे हैं, तो नोट्स वगैरह जो है वो अभी से मुझे बनाने चाहिए, अभी स्टार्टिंग है पॉइंट अभी जो है वो बिल्कुल जी, नोट्स बेसिक से। बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, वरना चीज़ें भूलती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू नोट्स के सर, बगैर थैंक यू सर, नहीं सॉल्व करना चीज़ों थैंक को। यू सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। जी, नेक्स्ट वी हैव सारा खान। क्या क्वेश्चन है आपका? सारा, आई थिंक यू आर अनेबल टू अनम्यूट।
आप टेक्स्ट कर दें क्वेश्चन। जी महाजबीन, आपका क्या क्वेश्चन है? आई थिंक यू आर स्टिल अनएबल टू अनम्यूट। जी अली मर्दान, यू हैव अनदर क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक सवाल सर दूसरा ये था कि सर ये कहते हैं कि ऐसे एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपकी आउटलाइन देखता है, इंट्रो देखता है, कंक्लूजन देख लेता है, उसे पता चल जाता है। यहाँ तो आउटलाइन सिर्फ देख लेता है। तो दूसरे पेपर्स में भी सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सर आपको इतना एक्सपीरियंस हुआ है, क्या इस चीज का कुछ पता है कि एग्जामिनर एक कॉपी पर कितना टाइम अलाउट करता है? मतलब हमें थोड़ा लिखने वालों को शायद ये ऐसा महसूस होता है कि मे भी ओवरसाइट हो जाए, एग्जामिनर हमारी एक एक वर्ड नहीं पढ़ेगा। तो थोड़ा इस मतलब कंफ्यूजन को अगर आप थोड़ा सा अगर आप एड्रेस कर इसी दें। तरह नजरिए से देखें और आपने कोई ऐसा लिखा हो पैराग्राफ जिस जो सोचें कि चलो यार इग्नोर हो जाएगा और एग्जामिनर वही पढ़ ले, किस्मत का नहीं पता होता। लेकिन अगेन चीज़ें वही की जाती हैं जो कि मतलब कि होती हैं ना, रैंडम होती हैं। वो एक में भी सारा ना पढ़े लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर पढ़ ले और उसको समझना है, और आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हो अच्छी हो वो सारी माइनस आउट हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी जो है ना मैटर कर रही होती हैं। हमें हर चीज़ पे फोकस करना होता है, हर चीज़ पे हमें कंसंट्रेट करना होता है और किसी चीज़ को लक पे नहीं छोड़ना। तो इसी वजह से इसको कंपटीशन एग्जाम हम कहते हैं, ठीक है। ठीक सर, प्रेजेंटेशन ठीक बहुत ठीक। practically मतलब और इसके कोई स्पेसिफिक टाइम, जी स्पेसिफिक टाइम नहीं प्रेजेंटेशन होता, मतलब एक और कॉपी पर इतना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। सर जी सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, जो बिगनर है जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट हुए और उनकी इंग्लिश भी गुड नहीं है, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो पहले अपने ग्रामर ठीक करे, पहले आपका क्लास ले ले? इसमें तो साथ साथ चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ग्रामर के ऊपर स्टार्ट पे ही वर्किंग करें, ये ना करें कि उसको हम स्किप कर दें। जैसे मैंने जी आपको सर। डेली शेयर किया, आप ये चलती रहेगी। और ये जो एडवांस भी हो गया ना, जो जिसने तैयारी कर भी लिया उसके लिए भी ग्रामर रेगुलर ही चलती रहेगी। इट इज़ नॉट लाइक कि आप इस पे एक मंथ लगाएं और उसको लीव कर दें। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कैन नॉट सर स्किप इट। मतलब अ, जो बिगनर्स है वो आपकी क्लास ले सकते हैं, नो इशू ना सर? कोई मतलब जी बिल्कुल, हम सही सर। इसको बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और मोस्टली ये सेशन वही लेते हैं जो बिगिनर है। जो एडवांस हो जाते हैं वो तो मेरा लास्ट सेशन मोस्टली लेते हैं। और इसमें हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और थोड़ा लेंथी भी जाता है सेशन। सर एक और क्वेश्चन ये था कि सर हम लोग मैं हेलो बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान से हूँ सर, तो सर वहाँ पर इंटरनेट इशू हमारा बहुत होता है, कभी कभार हमारा इंटरनेट फुल ही चला जाता है, तो सर ये रिकॉर्डिंग हमारे लिए मतलब कैसे आप प्रोवाइड करेंगे? जैसे मैंने गूगल क्लासरूम शेयर किया आपके साथ, वंस यू इनरोल्ड वी विल शेयर अ लिंक ऑफ गूगल क्लासरूम विद यू। इट इज़ अ यस सर। सॉफ्टवेयर, आप वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे, आई प्रेफर के लैपटॉप हो उस पे ओपन कर लें। उसमें जी मैं रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ यूट्यूब लिंक होता है। तो अगर आप ओके। यूट्यूब पे कोई आप चल जाती है तो उसी तरह वो भी क्लास भी चल जाएगी रिकॉर्डिंग की। और यू कैन वॉच इट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। सही तो सर, आई थैंक यू सो नो मच के सर। स्टूडेंट्स होते हैं यस ऑनलाइन, सर। उनको ये इशू तो होते सर हैं, ये ठीक है। होल ईयर हमारे पास ये रिकॉर्डिंग होगी या विद इन फ्यू मतलब टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आप वो करेंगे? ये फरवरी 2026 तक अवेलेबल रहेंगे। सही सर, थैंक यू सो मच। महजबीन, कैन यू अनम्यूट? यस सर। जी, क्या क्वेश्चन है? सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक ये कि बलूचिस्तान वालों के लिए अपर एज लिमिट कितनी है? इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आप इसको काइंडली एफपीएससी से चेक कर लें, उसके न्यूज़ में लिखी होती है। सर मतलब बाकी प्रोविंसेस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, 30 से अबव है या नहीं? मुझे एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा आपको। ओके सर। सर बाकी आपसे ये सजेशन लेनी थी कि अगर हम एसए के लिए, क्योंकि मैं हम लोग जो है ना बिल्कुल यूं कहें कि बिल्कुल जीरो, हमारा जो लेवल है बहुत नीचे है। सर अगर उसके लिए हम पहले खुद ऐसे पढ़ें, मतलब थोड़ा समझे, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद क्लासेस लें, या क्लासेस से भी वैसा ही फायदा होता है?
ऐसे क्लासेस की बात कर रही हैं? जी 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 सर। ऐसे क्लासेस अगेन यही कहूंगा कि ऐसे की क्लासेस कोई स्पेसिफिक नहीं होती। हाँ, जी सर। आपको जो सिखाते हैं मेंटोर वो आपको बता देंगे कि यार अच्छा इस तरह ऐसे होता है, इंट्रोडक्शन ये होता है, आउटलाइन ये होती है। लेकिन जब आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो आप उसको क्या उससे गेन करेंगे? आप जी इसको ऐसे को मतलब मेरे भी यूट्यूब पे लेक्चर हैं ऐसे गाइडेंस के, मैंने भी शेयर किए हुए हैं। तो इसी तरह बेसिक चीज़ों को खुद सर्च करें, जैसे थीम वाइज टॉपिक आप स्टार्ट करें कोई भी, उसकी एक बेसिक आउटलाइन बनाएं। या आप बेसिकली स्टार्ट करें पैराग्राफ राइटिंग से, आपको पैराग्राफ लिखना आएगा तो फिर आप ऐसे पे जाएंगे, और आपकी हम्म, वोकेबलरी ठीक होगी, फिर ग्रामर ठीक होगी तो आप ऐसे पे जाएंगे। तो शुरू में आप अपने ऊपर खुद टाइम इन्वेस्ट करें 1-2 महीने, और फिर जी कोई आप देख लेंगे जो आपको ऐसे का थोड़ा गाइड कर दे, और फिर उसके बाद वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, गाइडेंस एक ही लेक्चर में एक ही चीज़ होगी, और फिर हम्म। उसके बाद देख। सर इसके लिए मैं मुझे मेरा एक और थोड़ा सा सीएसएस से रिलेवेंट क्वेश्चन है। वो ये कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो सर उसके लिए तकरीबन 3 to 4 months ही होंगे। सर उस लेवल तक मेरा फिर ऐसे हो सकता है, मतलब अगर मैं हाँ पहले अभी खुद 2 months करूँ और फिर जी जी, उस लेवल पे हो जाता है 3-4 महीने में लेट्स से तैयार, बट और यू सर हैव टू ऑन डेली बेस। और सर इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब पेपर 2 है। सर उसके लिए मैंने मैम सस्सी से भी बात की और बाकियों से भी, उसके लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिला सर, अगर आपकी नज़र में कोई है। मेरी अगर नज़र में हो तो मैं शेयर कर दूंगा, अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। ठीक ओके, थैंक यू सो मच सर। है जी। सारा, यू हैव अनदर क्वेश्चन? आई थिंक यू कैन नॉट अनम्यूट। फाइन। So I think that is the end of our lecture today. It's an orientation class and it's more of a kind of briefing class, a type of general guidance for CSS aspirants. इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई विल शेयर द लिंक एज वेल, एंड द रिकॉर्डिंग sorry, the registration is still open. If anyone is still interested, you can text my admin. The number is already shared with you. आप इस पर टेक्स्ट करके जो भी आपकी क्वीरीज हैं आप उसको आंसर कर सकते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स का लेक्चर, टॉपिक होगा इकोनॉमी, उसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और पाकिस्तान अफेयर का मैं पाकिस्तान अफेयर्स की पोस्ट पार्टीशन डेवलपमेंट से स्टार्ट करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड आई होप कि कुछ चीज़ें आपने लर्न की होंगी आज के सेशन में, और आज का टाइम, द 2 hours स्पेंड विद मी will remain fruitful in your next CSS journey. And I wish you best of luck and thank you for joining my session. Allah Hafiz.